everyone wants, right? We will not meet one single person in our life who will say that I don't want success in my life. I don't want to be successful in my life. We will not meet any such person in our life. But then, is everyone able to get that success? क्या सबको मिल जाती है success? सबको नहीं मिल पाती. और जो सबसे बड़ा reason आज के time में especially, we are living in a world of distractions. There are so many distractions. तो जब तक हम focus ही नहीं कर पाएंगे अपने task पर, जो भी हमने करना है, अपने goals पर, तो हम सक्सेसफुल हो पाए इस बात के चांसेस ऑब्वियसली थोड़े से कम हो जाएंगे. बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट वी ऑल नो दिस. प्रॉब्लम माइंड की यही होती है. आई एम अ माइंड कोच, सो आई विल कनेक्ट ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई से विद द माइंड. तो प्रॉब्लम क्या होती है? हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हमें पता है सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है. प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब सारी विल, सारी इंटेंशन होने के बाद भी वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द वर्क दैट वी वांट टू डू. राइट? सो व्हाट डू वी नीड? We just need to work on our focus. Goals पे तो हम काम करेंगे, एक्शन तो हम लेंगे, बट वहां तक हम तब पहुंचेंगे जब पहले हम अपना फोकस मेंटेन कर पाएंगे. Right? Is that clear? Show me a thumbs up. Please switch on your cameras, everyone. Those of you who have not switched on their cameras, I request, although most of you have, and I really, really appreciate that. Because when your cameras are on, I'm able to have a look at your beautiful faces, और मुझे भी पता चलेगा that you are understanding. If you have any problem, you can also, you know, हमारे जो facial expressions होते हैं वो बहुत ज्यादा जो लैंग्वेज होता है उसको कवर कर लेते हैं. हम बोल के तो बात करना अभी पॉसिबल नहीं है, बट देन आई गेट टू नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग और यू हैव एनी प्रॉब्लम. आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ थम्स अप देयर. थैंक यू सो मच. So let's start with the session. Is everyone ready? Show me a thumbs up. Come on, show me a thumbs up. Everyone is ready? Okay. If you face any problem in whatever I'm speaking, if you're not able to understand, if you want to change the medium of instruction, Hindi or English, kuch bhi issue ho, you can write in the chat box. I'll try to convert it there and then. You can even let me know right now also, because I think I'll be taking the section in both English and Hindi mix. I hope that's okay. Hindi. Okay. I'll be using both the languages. I'll be using more of Hindi and okay. Thank you so much. Let's start our session. So this is going to be the session for today, the focus blueprint. जैसा कि शिवम ने भी बोला that focus is your key to success. मैंने भी आपको भी बोला that if you really want to achieve success in your life, all of us, you have to start working on your focus. Because unless and until you have focus in your life, you're not able to focus on your task, on your goals. It's very, very difficult to achieve that success that you want to achieve. तो आज का जो हमारा topic है, that is the focus blueprint. ठीक है, स्टार्ट करते हैं एजेंडा से कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू बी टुगेदर फॉर गुड 2 hours, एटलीस्ट 2 hours. मेरी क्लास कभी भी डिसाइडेड टाइम में ना खत्म नहीं होती है, हमेशा एक्सटेंड ही होती है. तो एटलीस्ट 2 hours वी आर गोइंग टू बी टुगेदर. Right? So let's see what all we are going to learn today. We'll be learning what is focus. Of course, you need to know होता क्या है. Word use तो बहुत बार करा है, लेकिन आज अगर हमसे कोई पूछ ले कि है क्या focus exactly, तो we'll not have a real definition. Then we'll understand why do you need focus in life. What are the factors that are killing your focus? There are so many factors in today's world which actually kill your focus. And this is the reason you are not able to focus on the work that you want to. Right? And then we will also learn about many techniques to enhance your focus. कि अपनी life में आपने focus को enhance कैसे करना है, कैसे अपने focus को बढ़ाना है, so that you are able to achieve the success that you want to achieve. Right? So excited to learn about so many things. Before we start, although Shivam has already introduced me, but still I would like to introduce myself. I'm Sapna Patheja. I was a teacher by profession earlier. I was a maths teacher. I've done MCom, I've done BCom honors, and I have done B.Ed also. I was a maths teacher by profession, so I've been on that side, being a teacher in a school. But then when I was teaching in a school, I noticed that I used to teach maths. There were teachers who were teaching science, social science, so many other subjects. The students were getting a lot of knowledge. They were getting a lot of knowledge, but what was missing in that school education was that the students were not taught any life skills. ये हमारा mind जो कि इतना powerful gadget हमें मिला है, इसको use कैसे करना है? We were never given any instructions. We were never given any instructions at all कि इस power को हमने कैसे use करना है. हमें स्कूल में क्या मिला? फोकस करो. ये तो हमने स्कूल में भी सुना है ना. किस किसने सुना है? स्कूल में भी और पेरेंट्स से भी. फोकस करो, लाइफ में फोकस करो. कैसे करना है फोकस, वो कभी किसी ने नहीं सिखाया. राइट?
ये तो बोल दिया फोकस करो, ये तो सबने बोल दिया दैट यू शुड थिंक पॉजिटिव, हाउ वाज नेवर टोल्ड टू अस? मेथड्स तो कभी सिखाए नहीं गए. तो दिस वाज द थिंग दैट आई फेल्ट इज रियली रियली मिसिंग इन द स्कूल एजुकेशन, क्योंकि आई हैव बीन ऑन दैट साइड, सो आई नो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स देयर. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग स्कूल एजुकेशन, दैट इज आल्सो मस्ट, बट देन ओके, आई विल बी यूजिंग मोर ऑफ हिंदी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ठीक है ना? तो स्कूल में हमने ये तो बहुत सीखा कि साइन थीटा कॉस थीटा कैसे पढ़ना है, फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, लेकिन लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तब क्या करना है? फोकस करो, खुश रहो जिंदगी में, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो भूल जाओ उसको, आगे बढ़ जाओ जिंदगी में. कैसे? नहीं हो रहा ना हमसे, तो कैसे करना है वो कभी किसी ने बात ही नहीं करी. तो आई ऑलवेज वांटेड टू फोकस मोर ऑन दी मेथड्स. मुझे लगता था कि बच्चों को इंस्ट्रक्शंस तो बहुत मिलती हैं, मेथड्स नहीं मिलते हैं. सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस फील्ड एंड आई ट्रेन पीपल विद द माइंड टूल्स विच आर नॉट टॉट इन स्कूल्स. जैसे कि वो अपनी लाइफ में जो उन्होंने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस जो मिली हुई है उनको लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, हाउ वाला जो पार्ट जो कि मिसिंग है वो कहाँ, वो कैसे, वहां कैसे पहुंचना है. दैट इज माई पर्पस, टू टीच एवरीवन अबाउट द मेथड्स. इंस्ट्रक्शंस बहुत मिली, आज तक मिल रही है ना? सबको मिली होंगी? शो मी अ थम्स अप. बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस, टोटल लिस्ट. फोकस करो, आगे बढ़ो, गुस्सा कम करो, खुश रहो, पॉजिटिव सोचो. सो मेनी इंस्ट्रक्शंस but no methods. So today we are not only going to talk about the instructions, we are going to talk about the methods. ठीक है? करें शुरू? Let's start. तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम व्हाट इज फोकस. किसी भी चीज को अगर आपने जानना है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि फोकस होता क्या है. क्या होता है फोकस? लोगों ने बोला तो बहुत फोकस करो, होता क्या है? आप लोग बताइए. आई वॉन्ट माई सेशन टू बी एन इंटरएक्टिव सेशन. आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो. आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव अ लेक्चर हियर कि मैं यहाँ आऊं 2 घंटे बोलूं और चली जाऊं और आपका बस वो यहीं रह जाए, इन्फॉर्मेशन यहाँ ना पहुंचे. आई डोंट वॉन्ट दैट. सो आई वॉन्ट यू गाइज टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन. मुझे आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है क्या होता है फोकस? आपने खुद भी यूज करा ये, लाइफ में फोकस नहीं है ना? और लोगों ने भी आपको बहुत बोला लाइफ में थोड़ा फोकस लेके आओ. बट ये होता क्या है? सिर्फ अपने एम को ही देखना, गोल्स, कंसंट्रेशन, ability to concentrate on one thing and bring productivity out of it. Very good. Goals को देखते हुए work करना. Absolutely. Okay. There are so many people, 122 people I can see and just 4 answers. बाकी लोगों को क्या लगता है क्या होता है फोकस? कंसिस्टेंसी मेंटेन करना. वेरी गुड. फोकस, गोल्स, कॉन्सेंट्रेट, सारे वर्ड लिख दिए है ना? ठीक है. और फोकस एंड फ्यूचर. ठीक है. सो बेसिकली फोकस क्या है? देखिए, अब जो जितने भी आंसर्स आए हैं उन पर भी अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें तो फोकस क्या है? फोकस इज योर एबिलिटी टू कंट्रोल एंड होल्ड योर अटेंशन. जो आपकी अटेंशन यहाँ वहां 10 जगह बिखरी हुई है, लिटरली बिखरी हुई है, और आज तो इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में. तो जो आपकी अटेंशन जो इतनी सारी जगह पर बिखरी हुई है उसको जब हम इकट्ठा करके और एक जगह पर लेके आते हैं, ठीक है, एक जगह पर जब हम उसको लेके आते हैं तो वो फोकस है. डू यू ऑल एग्री विद मी? जब हम यहाँ से हटा के और जहां हम चाह रहे हैं, द प्लेस, द ऑब्जेक्ट, द सिचुएशन, द टास्क, एनीथिंग, जिस भी इंसान पर, जिस भी सिचुएशन पर, जिस भी टास्क पर अपनी अटेंशन जब हम चाह रहे हैं यहां पर रहे और हम उसको वहां ला पाते हैं और कंसिस्टेंटली ला पाते हैं तो वो फोकस होता है. अब होता क्या है कि ये जो हमारा माइंड है, दिस इज डिजाइन्ड टू बी डिस्ट्रैक्टेड. इसमें हमारी कोई गलती नहीं है. हमें सबने ये बोला फोकस करो, हम फोकस कर नहीं पाए. लोगों ने भी हमें ब्लेम करा कि तुम फोकस नहीं करते हो. हमने खुद को भी ब्लेम करा कि मेरे में ना फोकस नहीं है, मैं ना लाइफ में फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं अपना कोई गोल अचीव नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरे में ना फोकस नहीं है. तो हमने क्या करा? सिर्फ और सिर्फ खुद को ब्लेम करा. लोगों ने भी हमें ब्लेम करा. बट वी नेवर अंडरस्टूड दैट द बेसिक नेचर ऑफ आवर माइंड इज टू बी इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन. हमारे माइंड का जो एक बेसिक नेचर है वो ऐसा है कि वो डिस्ट्रैक्टेड ही रहता है. हमारे माइंड में देयर इज अ नेगेटिविटी बायस, जिससे कि जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं उनकी तरफ वो बहुत आसानी से चला जाता है, और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ लाने के लिए हमें अपने माइंड को प्रोग्राम करना पड़ता है. हाउ टू स्टे फोकस्ड, हाउ टू बी फोकस्ड इन लाइफ, इसके लिए हमें सेशन अटेंड करना पड़ता है. हाउ टू बी डिस्ट्रैक्टेड के लिए हमें कोई सेशन नहीं चाहिए, उसमें हम ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं. राइट? हाउ टू थिंक पॉजिटिव, उसके लिए हमें बुक्स पढ़नी पड़ती हैं. हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, उसके लिए हमें बुक्स पढ़नी पड़ती हैं. हाउ टू बी सैड, हाउ टू बी एंग्री,
हाउ टू थिंक नेगेटिव, उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, उसमें हम ऑलरेडी एक्सपर्ट है. सो दिस इज द नेगेटिविटी बायस दैट वी हैव इन आवर माइंड, जो कि वो नेगेटिव चीजों की तरफ, नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स की तरफ वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन हमें उसको कॉन्शियसली प्रोग्राम करना पड़ता है टुवर्ड्स द राइट थिंग्स. तो ऐसे ही माइंड का जो बेसिक नेचर है वो है डिस्ट्रैक्टेड रहना. वी विल हैव टू कॉन्शियसली ट्रेन एंड प्रोग्राम आवर माइंड टुवर्ड्स फोकस, राइट? सो देयर इज नो पॉइंट सिटिंग एंड सेइंग मेरे में फोकस नहीं है, मेरा माइंड बड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहता है. दिस इज हाउ द माइंड इज. बट the good news is that it is reprogrammable. Your mind is a very very powerful gadget. और इसकी सबसे जो सुंदर बात है, जो इसकी the most beautiful aspect of our mind is that it is reprogrammable. अगर आज आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं और डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो there is nothing wrong in it. You can always reprogram your mind for focus. You can always reprogram your mind for success, and that is exactly what we are going to do today. ठीक है, आज हम माइंड को दिखाने वाले हैं कि फोकस क्या होता है, क्यों नहीं कर पा रहे, कैसे करते, राइट? तो जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, जितनी इन डेप्थ हमें उसकी नॉलेज होती है ना, उतना हमारे लिए इजी हो जाता है उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना. अब अगर हम साइकोलॉजी की फॉर्म में समझें कि फोकस क्या होता है, जरा ध्यान से सुनेंगे. आई ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आवर माइंड कैन ग्रास्प 126 बिट्स पर सेकेंड ऑफ इंफॉर्मेशन. एक टाइम पर हमारा माइंड 126 बिट्स इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है? इस 126 बिट्स में से 30 बिट्स के अराउंड चली जाती है बॉडी और एनवायरमेंटल अवेयरनेस में. बॉडी और एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्या होती है कि मैं कंफर्टेबल हूं या नहीं, गर्मी है, ठंड है, मुझे कहीं बॉडी में पेन तो नहीं है. ये सारी अवेयरनेस हमें हर समय रहती है ना, इस पे तो हमें फोकस इंटेंशनली नहीं ले जाना पड़ता. हमेशा हमारे ध्यान में ये चीजें होती हैं कि कैसा मौसम है, टेम्परेचर कैसा है, यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंड है, मुझे कहीं कुछ पेन तो नहीं है, जहां मैं बैठा हूं वहां मैं कंफर्टेबल हूं या नहीं. तो यहाँ पर हमारे 126 बिट्स का कुछ परसेंटेज 30 बिट्स यहाँ चला जाता है, बचा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 90 बिट्स. ठीक है, अब आप लोग यहाँ बैठे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं. किसी भी इंसान की बात को सुनने, किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन लेने और उसको प्रोसेस करके समझने के लिए हमें एटलीस्ट 70 बिट्स चाहिए होता है. ठीक है, अब आप 70 बिट्स मेरे से ले रहे हैं, आपकी अटेंशन यहाँ पर है, आपका फोकस यहाँ पर है. सपोज इन बिटवीन आपके पास कोई और आ जाता है और वो बोलना शुरू कर देता है. अब उसकी बात को समझने के लिए भी आपको 70 बिट्स चाहिए, बट डू यू हैव दो 70 बिट्स? वो तो है ही नहीं ना, इतनी तो कैपेसिटी नहीं है माइंड की, क्योंकि बचे ही 90 थे, 90 में से 70 आप मेरी बात सुन रहे हो. कोई भी और काम अगर आप करने लग जाएंगे तो आपकी अटेंशन, आपका फोकस यहां से हट जाएगा, राइट? तो यही होता है हमारे साथ कि जब हम कहीं एक जगह से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ स्टूडेंट, आप फिजिक्स की बुक खोल के बैठे हैं, ठीक है, आप पूरी अटेंशन के साथ वो बुक पढ़ रहे हैं. बीच में क्या होता है, पूरा का पूरा बचा हुआ 90 बिट्स आप उसी सोर्स से ले रहे हैं, पूरे फोकस के साथ पढ़ रहे हैं. बीच में एक टिंग बजती है फोन की, एक नोटिफिकेशन, और आपका फोकस, आपकी अटेंशन वहां चली गई, स्टेट टूट गई. जो आप पूरी फोकस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे थे, अब आपका फोकस चला गया फोन पे. वो आपको लगता है कि 2 मिनट लगे, बस वो 2 मिनट लगते नहीं है. यू ऑल्सो नो दैट. डू यू ऑल एग्री विद मी? 2 मिनट कभी भी नहीं लगते, नहीं लगते ना. एक तो वैसे नहीं लगते प्रैक्टिकली, और दूसरा ये कि जो हमारा जो अटेंशन टूट गई, जो वो ब्रेक आ गया, वो हमारी जो फ्लो स्टेट थी, दैट स्टेट व्हेन यू आर टेकिंग ऑल द 126 बिट्स फ्रॉम वन सोर्स, उस स्टेट को कहते हैं फ्लो स्टेट. और फ्लो स्टेट लर्निंग के लिए इज सेड टू बी अ मैजिकल स्टेट. अगर आपने लाइफ में एक्चुअली कुछ लर्न करना है, जब आप चाहते हैं कि अंदर से आइडियाज आए, आपने देखा होगा पेंटर्स को होता है ना, उनके साथ अपनी पेंटिंग बनाने लगे तो वो खो जाते हैं, उनको एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी नहीं रहती, गर्मी है कि ठंड है कि भूख लगी है कि प्यास लगी है, उनको वो भी होश नहीं रहता. होता है ऐसा, ऑथर्स के साथ होता है. व्हेन दे आर राइटिंग बुक्स, बिल्कुल कोई दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती है. तो उस टाइम पे क्या होता है, वो फ्लो स्टेट में होते हैं, मतलब कि वो पूरी इंफॉर्मेशन एक ही जगह से ले रहे हैं. तो अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह से ले रहे हैं तभी आप फोकस्ड हैं. सो नेवर थिंक दैट यू आर लिसनिंग टू मी, मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं और साथ में आप थोड़ा थोड़ा साथ साथ कुछ और भी कर रहे हैं, तो आपके यहाँ फिर वो आधी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी. हमें लगता है कि क्या हो गया, 1 मिनट फोन देख लिया, क्या हो गया 2 मिनट यहाँ बात कर ली, क्या हो गया 2 मिनट ये बुक खोल ली, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट. आवर माइंड डजंट वर्क लाइक दैट. It has to have that focus if you actually want to grasp information, right?
तो अब आप मुझे बताइए कि फोकस की जरूरत क्या है लाइफ में। फोकस तो हमने समझ लिया क्या होता है, कि हम सारी इंफॉर्मेशन कहीं से ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन के साथ ले रहे हैं। जब तक हमारे माइंड को, हमारा जो माइंड है ना, वो वाई की लैंग्वेज समझता है, इट ओनली एंड ओनली अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ वाइज। अनलेस एंड अनटिल, नो मैटर आप लाइफ में जितने मर्जी गोल्स बना लीजिए, अगर आपके माइंड को समझ में नहीं आ रहा ना कि ये क्यों करना है, द माइंड इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग unless and until the why is clear to the mind। आप कहते हैं मुझे लाइफ में ये गोल अचीव करना है, वो करना है, माइंड कहता है why। अगर माइंड वो why, एनएलपी में इसका एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट होता है, कनेक्टिंग योर वाइज विद योर पीआईपीज, कि आप अपने वाइज को, अपनी प्री इंस्टॉल्ड हमारे अंदर कुछ नीड्स होती हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं। और अगर वो कनेक्शन बन पाता है तो माइंड ऐसे एक्शन लेता है। और अगर माइंड को वाई समझ में नहीं आ रहा ना, तो वो कोई एक्शन नहीं लेगा। आप बनाते रहो गोल्स, आप बैठ के अपनी टू डू लिस्ट बनाते रहो, बड़े बड़े गोल्स बनाते रहो, बड़े बड़े सक्सेस के सपने देखते रहो, द माइंड इज नॉट गोइंग टू टेक एक्शन। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि क्या जरूरत है लाइफ में फोकस की, वाई। मैम कभी कभी लगता है कि सब चीज हासिल कर लूं, बट नेक्स्ट डे आई फॉरगेट इट। कॉन्सेंट्रेशन इन एनी वर्क, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। हाँ, अगर हमारी लाइफ में फोकस होगा तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, ऑब्वियसली ऑपोजिट्स हो गए दोनों। अगर फोकस्ड है तो डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे। इसका एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, दैट व्हाई डू वी नीड टू व्हाई डू यू नीड फोकस इन योर लाइफ। सी, 6th 7th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में हमने पढ़ा था दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। पढ़ा था हमने कि यूनिवर्स में जो कुछ भी है, वेदर दे आर लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स और ऑब्जेक्ट्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जहां भी आपका फोकस जाता है वहां आपकी एनर्जी जाती है। फोकस मतलब आपका ध्यान, आपकी अटेंशन। जिस चीज पर आपने अपनी अटेंशन दी, आपकी एनर्जी वहां चली गई। और जिस चीज पर आप अपनी एनर्जी भेजते हैं, आपकी लाइफ में वो चीज बढ़ती ही बढ़ती है। वेर एवर योर फोकस गोज, the energy flows towards that thing, and that thing always grows। अगर आपका फोकस, इसको हम बहुत सिंपल भाषा में अगर समझेंगे तो वो ये है कि अगर आपका फोकस हर समय कंप्लेंट्स पर है, तो आपकी सारी एनर्जी कंप्लेंट्स में जा रही है, एंड कंप्लेंट्स आर गोइंग टू ग्रो इन योर लाइफ। अगर आपका सारा फोकस आपकी फेलियर्स पर है, उन चीजों पर है जो आप लाइफ में अचीव नहीं कर पाए, तो आपकी सारी एनर्जी वहां जा रही है और आपकी लाइफ में वही वही और ग्रो करेगा। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू फोकस ऑन द राइट थिंग। इफ यू आर फोकसिंग ऑन द ग्रैटिट्यूड, if you are focusing on what you have achieved in your life, if you are focusing on what you have done good in your life, then your energy is moving towards that thing, and that thing is going to grow in your life। क्योंकि हमें, जैसा कि मैंने बताया कि स्कूल में मेथड्स तो दिए नहीं गए, तो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट जो कि मिसिंग है ना, वो ये है कि इस अपने माइंड से, इस इतने इंपॉर्टेंट गैजेट से बात कैसे करनी है, वो हमें कभी किसी ने नहीं सिखाया। इसको इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है, वो हमें कभी किसी ने नहीं सिखाया। हम कहते हैं अपने माइंड को, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा। ठीक है, आई एम टेलिंग यू, लिसन टू मी वेरी केयरफुली एवरीवन। सबकी अटेंशन यहाँ पर, सबका फोकस यहाँ पर। ठीक है एवरीवन, आई एम टेलिंग यू, डू नॉट थिंक ऑफ अ रेड एलिफेंट। डू नॉट थिंक ऑफ अ रेड एलिफेंट। अभी इस टाइम कोई भी रेड एलिफेंट के बारे में नहीं सोचेगा। I am giving you this instruction that you are not supposed to think of a red elephant. No red elephant. Tell me in the chat box, how many of you could not stop yourself, could not stop your mind from creating a red elephant? कहीं ना कहीं आपके माइंड ने वो इमेज क्रिएट कर ली, जबकि you were told not to think of a red elephant। किस किसने क्रिएट कर लिया रेड एलिफेंट? किस किसने बना लिया यहाँ पर? मी। आई कैन इमेज, आई कैन। तो मैंने तो कहा था डू नॉट थिंक ऑफ अ रेड एलिफेंट, मैंने तो मना किया था ना। फिर कहां से आ गया रेड एलिफेंट? मी। नाउ द प्रॉब्लम इज, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम अपने माइंड से बात करते हैं, आई डोंट वांट टू बी लेजी, आई डोंट वांट टू बी एंग्री, आई डोंट वांट टू बी डिस्ट्रैक्टेड। माइंड को ये भाषा समझ में नहीं आती है। द माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड इट। आपने अपने माइंड को बोला आई डोंट वांट टू थिंक ऑफ अ रेड एलिफेंट, मैम ने मना किया है। I don't want to think of a red elephant. The mind created the red elephant there and then. Now, what will happen? Tell me. When you are telling your mind, I don't want to be lazy, I don't want to be angry, I don't want to fail in my life, that is what is going to be there in your life. Because we've not been taught how to talk to this,
हाउ टू यूज दिस, राइट? मतलब हम एक लिटरली एक मैगी भी हम लेके आते हैं ना घर में, तो मैगी के पीछे भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि वो कैसे बनानी है। एक शर्ट भी हम खरीदते हैं तो उसमें भी इंस्ट्रक्शन साथ में आती हैं, कैसे धोना है, कैसे प्रेस करनी है, कैसे यूज करना है, राइट? बट दिस such important, such useful gadget has come without any instructions manual. कोई instructions नहीं है कि इसको कैसे यूज करना है. So we have to actually, if we learn to use the ultimate power of our mind, we can actually create magical results in our life. So we have to understand that whatever we want to grow in our life, we have to concentrate on that. If we do not want to grow failures in our life, we have to stop looking at the failures. ठीक है ना, हो गया ना, सबके साथ होता है. अंबानी फेल नहीं होता होगा क्या? लेके नहीं बैठना होता ना, पूरी एनर्जी वहां पर नहीं देनी है. फेलियर आ भी गई लाइफ में, लेसन लिया, मूव ऑन कर गए, आगे बढ़ गए. लाइफ हैज नॉट एंडेड, राइट? डू यू ऑल एग्री विद मी? शो मी अ थम्स अप. आई कांट सी द थम्स अप. मैम थोड़ा हिंदी, आई एम सॉरी. ठीक है, तो माइंड को ये वाली भाषा जरा कम समझ में आती है कि क्या नहीं करना है. और अगर हम हमेशा फेलियर्स पे फोकस करेंगे तो हमारी लाइफ में फेलियर्स ही बढ़ेंगी. सिंपल भाषा में ये बात है. थैंक यू सो मच, थैंक यू. ठीक है जी. तो अब हमें पता भी है कि लाइफ में फोकस करना है, हमें पता भी है कि फोकस इज सो इंपॉर्टेंट. बट इवन आफ्टर बीइंग अवेयर, अब हमें पता है लाइफ में फोकस की क्या इंपॉर्टेंस है. हमें पता है कि अगर हम फोकस करेंगे तो शायद हम सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, हम अपने गोल्स भी अचीव कर लेंगे. बट इवन आफ्टर हैविंग ऑल दिस नॉलेज, ये सारी नॉलेज होने के बाद भी कई बार हम फोकस नहीं कर पाते. होता है ना ये. आज से पहले भी आपको ये तो था ही ना कि मुझे फोकस करना है, बट नहीं कर पाते हैं. इसका मतलब देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, कुछ तो ऐसी चीजें हैं लाइफ में जो कि हमें रोक रही हैं फोकस करने से, राइट? देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच आर स्टॉपिंग अस, व्हिच आर किलिंग आवर फोकस. हमारे फोकस को कुछ चीजें हैं जो कि खत्म कर रही हैं. तो अगर दुश्मन को मारना है तो दुश्मन को मारने का पहला स्टेप क्या होता है? कि पता हो दुश्मन है कौन. अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप. यू हैव टू बी अवेयर कि क्या चीजें हैं जो मुझे फोकस नहीं करने दे रही हैं. जब हमें पता चल जाएगा दुश्मन कौन है तो हम उसको मार भी लेंगे. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द थिंग्स व्हिच आर नॉट लेटिंग अस फोकस इन आवर लाइफ. फैक्टर्स दैट आर किलिंग योर फोकस, लिटरली किलिंग योर फोकस इन लाइफ. कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक बार हम इनकी लिस्ट देखते हैं जरा. क्या क्या हमारे फोकस को किल कर रहा है, क्या कौन सी चीजें हैं जो कि हमें अटेंशन को एक जगह पर होल्ड नहीं करने दे रही हैं. डिस्ट्रैक्शंस, of course we'll discuss all of them in detail also. Let's have a look at them first. Distractions are there, हम बोलते हैं. Physical and mental clutter is there. I'll be explaining them in very simple language very soon, don't worry. We'll be explaining them in very very simple language. Then we have nutritional deficiency and low energy levels which have a direct impact on our focus. Then we have lack of deep sleep, बड़ा ही for granted लिया हुआ है हमने अपनी sleep को. Then we have lack of movement and sunlight. Then we have shallow breathing and dehydration. We'll be discussing all these factors. And the last one is going to be a bulb on moment. क्योंकि वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि हम लोग सोचते हैं कि वाह यार, ये तो करके तो मैं बड़ा प्रोडक्टिव हो रहा हूँ, ये वाला काम करके तो ना मेरा बड़ा आउटपुट निकल के आ रहा है, मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहा हूँ. बट दिस इज नॉट द ट्रूथ. दिस इज द बिगेस्ट मिथ एंड दैट इज मल्टीटास्किंग. इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे दैट हाउ मल्टीटास्किंग इज एक्चुअली killing your focus. It is not making you more focused in life. It is actually killing your focus. आपके फोकस को ये कम कर रही है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम डिस्ट्रैक्शन से. डिस्ट्रैक्शंस के बारे में तो आज जितनी भी बात कर ले कम है, बिकॉज वी आर एक्चुअली लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, राइट? वी आर एक्चुअली लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ नोटिफिकेशंस. सुबह आंख खुलती है और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. क्या करते हैं आजकल हम? आंख खुलते ही पहला काम, उठते ही सबसे पहले हमारा हाथ कहाँ जाता है? सबसे पहले हम जनरली पीपल पिक अप देयर फोन्स. पहला काम करा, फोन उठा लिया. फोन ऑन करते ही इतनी सारी नोटिफिकेशंस आ गई. फिर हम एक एक नोटिफिकेशन को जाके चेक करते हैं, सारे मैसेजेस को हमने रिप्लाई करना है. फिर हाथ में फोन है तो सोशल मीडिया देखे बिना तो रख देंगे तो पाप लग जाएगा शायद. फिर हम सोशल मीडिया पे जाएंगे, फिर हम इंस्टाग्राम चेक करेंगे, फेसबुक चेक करेंगे. सब कुछ चेक करके घंटा डेढ़ घंटा फोन के साथ डिस्ट्रैक्टेड रह के फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है अपने में. तो द मॉर्निंग टाइम विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम, पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है मॉर्निंग का टाइम, वो हमने स्टार्ट किससे करा? डिस्ट्रैक्शन से स्टार्ट करा. फिर हम कहते हैं कि हमारा फोकस नहीं बनता. सो डिस्ट्रैक्शंस आर द फर्स्ट फैक्टर विच आर एक्चुअली किलिंग योर फोकस.
एक लॉ होता है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। एज पर दैट लॉ, अगर आपने लाइफ में कोई भी स्किल को मास्टर करना है ना, तो उसको आपको 10,000 आवर्स तक प्रैक्टिस करना पड़ता है। टू मास्टर एनी स्किल इन योर लाइफ, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट स्किल फॉर एटलीस्ट 10,000 आवर्स। तो अब जरा आप अपने डेली रूटीन पर नजर डालिए और देखिए कि आप डेली रूटीन में क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। If you are touching your phone again and again during the day, if you are uselessly gossiping on your phone all the time, if you are watching news on the TV all the time which are not even relevant for you, तो आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? Are you practicing focus or are you practicing distraction? तो जो चीज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी में आप एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं एज पर द लॉ ऑफ प्रैक्टिस। अगर दिन में आप 3-4 घंटे भी फोन चलाते हैं तो अब तक 10,000 आवर्स तो आप क्रॉस कर चुके होंगे। दिस इज द रीजन वी हैव बिकम अ मास्टर एट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड नाउअडेज। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है ना। दिस इज द रीजन वी आर बिकमिंग अ मास्टर एट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड इंस्टेड ऑफ बीइंग अ मास्टर एट बीइंग फोकस्ड। फोकस को तो इतना प्रैक्टिस करा नहीं, डिस्ट्रैक्शंस को बहुत प्रैक्टिस करा है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जो आज की जनरेशन है ना, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, आज की जो जनरेशन है दैट इज द मोस्ट कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड जनरेशन। थोड़ा ऑक्सीमोरॉन लग रहा है, थोड़ा दोनों ऑपोजिट वर्ड्स लग रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट आई होप यू विल agree with me when I say that today's generation is the most connected disconnected। connected हम इतने ज्यादा हैं कि दुनिया के दूसरे कोने में बैठे इंसान से भी हम 2 सेकंड में कनेक्ट कर सकते हैं। और डिस्कनेक्टेड हम इतने ज्यादा हैं कि अपने घर के 4 लोगों के साथ भी जब हम बैठते हैं तो हम उनसे भी कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल बिजी विद आवर फोन्स। We are all busy with the people who are not even connected to us directly। तो जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइफ में वही बढ़ रहा है। अभी हमने बात करी ना, जहां हमारी एनर्जी जा रही है लाइफ में वही बढ़ रहा है। अगर हम डिस्ट्रैक्शंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस ही बढ़ रहे हैं। इतने ज्यादा कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड है हम कि हमारे एक क्लिक पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आज आप गूगल खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, देयर इज नो एंड टू द इंफॉर्मेशन दैट इज सो इजीली अवेलेबल टू अस। मगर डिस्कनेक्टेड हम इतने ज्यादा हैं कि एक सब्जेक्ट पर बैठकर 20-25 मिनट कॉन्सेंट्रेट करना भी हमें मुश्किल लगता है। लगता है कि नहीं लगता मुश्किल? बीच में 4 बार ध्यान यहाँ वहां जाता है और माइंड में तो कंटिन्यूअसली थॉट्स चल ही रहे होते हैं। सो वील बी डिस्कसिंग अबाउट द टेक्निक्स कि कैसे अपनी इस अटेंशन को वापस लेके आना है, कैसे वो कनेक्शन डिस्कनेक्शन को ठीक करना है लाइफ में। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शंस के बारे में वील टॉक अबाउट ईच फैक्टर व्हेन वील डिस्कस अबाउट द टेक्निक कि इनको हैंडल कैसे करना है। Let's move on to the next one, which is physical and mental clutter. We are dealing with a lot of clutter these days। पहले हम फिजिकल क्लटर की अगर बात करें तो आप एक बार नजर मारिए, जो भी आपकी काम करने की जगह है, चाहे वो स्टडी डेस्क है, चाहे वो आपकी वर्क टेबल है, चाहे वो आपका रूम है, कितना क्लटर है वहां पे, कितना क्लटर है। और आज क्या होता है, बच्चे क्या बोलते हैं जनरली कि मेरा ना मेस तो है बट बड़ा ऑर्गेनाइज्ड मेस है, आई कैन सर्च एनीथिंग दैट आई वांट टू। इवन माई सन ही विल से कि मम्मा मेरे बेड में पूरी बुक्स फैली हुई हैं लेकिन मुझे पता है कौन सी बुक कहां पर है। बट वॉट यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट दिस क्लटर आउटसाइड, ये जो बाहर का क्लटर होता है, ये यहाँ इम्पैक्ट डालता है। सपोज यू आर सिटिंग ऑन योर स्टडी टेबल और आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, सामने आपकी केमिस्ट्री की बुक भी पढ़ी है, इंग्लिश की भी पढ़ी है, फ्रेंच की भी पढ़ी है, सारी बुक्स और पढ़ी है। अब पढ़ तो रहे आप फिजिक्स, एक नजर जाने की देर है, एक नजर आपकी केमिस्ट्री की बुक पे जाएगी, माइंड में चेन ऑफ थॉट शुरू हो जाएगी। केमिस्ट्री का भी ना वो वाला चैप्टर अभी बचा हुआ है, अच्छा वो तो मैंने करा ही नहीं, अच्छा हाँ अभी ये भी तो रहता था वो भी, एंड देन द चेन ऑफ थॉट्स विल स्टार्ट। और अगर आपका जो भी ऑर्गेनाइज्ड है स्पेस, जो भी आपका स्पेस जहां पर भी आप काम करते हैं, जो भी आपकी लाइफ का काम है, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड है, इफ यू ओनली हैव द थिंग दैट यू आर सपोज टू फोकस ऑन एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो अटेंशन अपने आप यहाँ वहां कम जाएगी ना। फिजिकल क्लटर तो हम कम कर सकते हैं, मेंटल की भी हम बात करेंगे उसका क्या करना है, फिजिकल तो कम कर सकते हैं। तो आई वॉन्ट अ प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट यू विल ऑर्गेनाइज योर मेस, जितना मेस यहाँ उतना मेस यहाँ। ठीक है, ये तो बात हुई फिजिकल क्लटर की। नेक्स्ट है मेंटल क्लटर, जो कि ज्यादा डेंजरस है। मेंटल क्लटर क्या होता है? व्हाट इज मेंटल क्लटर? देयर आर सो मेनी थॉट्स गोइंग ऑन हियर ऑल द टाइम, कभी पास्ट की कभी फ्यूचर की, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो होना है, उसमें लाइफ में पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, पहले ये हुआ था, उसने मुझे ये कहा था। सो मेनी थॉट्स गोइंग ऑन हियर एंड थॉट्स ऑक्यूपाई स्पेस इन योर माइंड। आपके माइंड में थॉट्स
स्पेस लेती हैं, तो जब माइंड में ऑलरेडी इतना कुछ क्लटर्ड भरा हुआ है, तो नए आइडियाज कैसे आएंगे? उनके लिए तो स्पेस ही नहीं है ना। First, you have to learn to deal with this clutter, the physical and the mental. Only then you can expect yourself to be focused. जब तक हम अपना क्लटर खत्म नहीं करेंगे लाइफ से, फिजिकल भी और मेंटल भी, तब तक लाइफ में फोकस का आना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, we'll be discussing about the techniques also कि कैसे इस क्लटर को खत्म करना है। आज सब कुछ खत्म करके जाना है, ये सब दूर कैसे करें। डेफिनेटली फायदा नहीं है ना सब कुछ मैं बता दूं और उसके बाद तब इसको सॉर्ट आउट नहीं करें तो फायदा क्या। I'm not going to do that. We are going to talk about the techniques also. ठीक है, पहले जरा दुश्मन को जान ले, फिर दुश्मन को मारने की स्ट्रैटेजी सोचेंगे। ठीक है, let's move on to the next one, which is very very ignored one. Very very ignored. Neutral deficiency and low energy levels. हमारी जो बॉडी के एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे फोकस का। बिकॉज जो फोकस है, फोकस इज लाइक बैटरी। जैसे आपकी फोन की बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है और आपको उसको रिचार्ज करना पड़ता है, ऐसे ही ड्यूरिंग द डे हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल कम होते जाते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, इफ वी हैव टेकन अ गुड स्लीप, तो हमारी बॉडी में एक अच्छी एनर्जी होती है, राइट, वी आर फीलिंग एनर्जेटिक। बट ड्यूरिंग द डे धीरे धीरे वो एनर्जी डिप्लीट होती जाती है, कम होती जाती है। और जैसे जैसे एनर्जी कम होती है, वैसे वैसे हमारा फोकस भी कम होता जाता है, राइट। सो वी हैव टू इंश्योर कि हम उस एनर्जी को जो डिप्लीट हो रही है उसको हम वापस रीस्टोर कैसे करें, रिचार्ज कैसे करें। अगर हम रिचार्ज नहीं करते हैं तो हमारा फोकस भी धीरे धीरे डिप्लीट होता ही जाएगा। ठीक है, बिकॉज जैसा कि मैंने बोला, फोकस और एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली कनेक्टेड है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। फोकस, एनर्जी कम, फोकस कम, एनर्जी ज्यादा, फोकस ज्यादा। अब होता क्या है, हमारी बॉडी के कुछ तो होते हैं ऑटोमेटिक फंक्शन। एनर्जी जो है हमारी बॉडी में एक लिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल है। ठीक है, सब मानते हैं इस बात को कि एक लिमिटेड एनर्जी है ना हमारे पास। अब उसमें से कुछ एनर्जी तो चली जाती है। हिंदी में बोलिए मैम प्लीज, अब तो मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ ज्यादा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के कुछ ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन चलेगा ही चलेगा बॉडी में, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ये तो हमारी बॉडी में फंक्शन चल रहे हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर ही रहा है। ठीक है, हम बॉडी को ये तो नहीं बोल सकते ना कि अभी थोड़ी देर में जरा डाइजेशन रोक दो, मुझे जरा फोकस करना है, मेरे को सारी एनर्जी यहाँ चाहिए। दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो बॉडी विल यूज सम एनर्जी इन दी ऑटोमेटिक फंक्शंस। ठीक है, अब जो बची हुई एनर्जी है वो होगी फोकस में यूज। हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन के लिए ऑटोमेटिक फंक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट। उसके लिए डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आपके गोल्स वोल्स उसके लिए बाद में आते हैं। तो अगर हम अपनी सारी एनर्जी ऑटोमेटिक फंक्शंस में ही कंज्यूम कर देंगे तो हमारे पास फोकस के लिए एनर्जी कहां से बचेगी? नहीं बचेगी ना। और कैसे कंज्यूम कर देते हैं बहुत सारी एनर्जी इन दी ऑटोमेटिक फंक्शंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन एनर्जी ब्लॉकर्स। उनके बारे में भी हम बात करते हैं कि क्या चीजें हैं जो हमारी एनर्जी को ब्लॉक करती है, कैसे हम अपनी एनर्जी को मिसयूज करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास फोकस करने के लिए एनर्जी नहीं बचती है। अब जैसे डाइजेशन है, ठीक है। अब आपने क्या करा, आप सुबह सोकर उठे, सब रिलेट करेंगे मेरे ख्याल से इस बात से कि आप सुबह सोकर उठे एंड यू थॉट चलो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, क्योंकि फूड इज सपोज टू गिव अस एनर्जी, है ना, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। इफ यू हैड अ न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट यू विल गेट एनर्जी, लेकिन उस ब्रेकफास्ट को डाइजेस्ट करने के लिए भी आपकी बॉडी की एनर्जी यूज भी होगी। बट इफ यू हैड अ हेवी ब्रेकफास्ट, अगर आपने जंक फूड खा लिया बहुत सारा, छोले भटूरे खा लिए सुबह उठते ही, तो बॉडी की जो एनर्जी है वो पहले तो यूज होगी उसको डाइजेस्ट करने में, जो आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड फूड कंज्यूम कर लिया। फूड, ये एक मिथ है कि फूड से हमें सिर्फ एनर्जी मिलती है। फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, एनर्जी नहीं मिलती है। फूड को डाइजेस्ट करने में एनर्जी यूज होती है। एंड द काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग, जिस तरह का फूड आप खाते हैं, डिपेंड करता है कितनी एनर्जी यूज होगी। इफ यू आर ईटिंग गुड, इजी टू डाइजेस्ट, न्यूट्रिशियस फूड, यू विल गेट द न्यूट्रिशन एंड लेस एनर्जी विल बी यूज, कम एनर्जी यूज होगी उसको डाइजेस्ट करने में। बट इफ यू आर ईटिंग कॉम्प्लिकेटेड फूड, जंक फूड, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी की बहुत सारी एनर्जी यूज हो जाती है। यू वुड ऑल्सो हैव नोटिस्ड कि जब आप कुछ बहुत हैवी खा लेते हैं तो उसके बाद डू यू फील एनर्जेटिक और डू यू फील लेजी? जब कुछ बहुत हैवी खा लिया तो लेजी फील होता है ना, नींद आती है खाना खाने के बाद, पेट भर के खाना खा लिया फिर नींद आती है ना। लेजी क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल डिप्लीट हो गया उस फूड को डाइजेस्ट करने में, राइट। और क्या होते हैं एनर्जी ब्लॉकर? एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लॉकर होता है द अनफिनिश्ड एजेंडास, अनफिनिश्ड वर्क्स।
जो भी हमारे काम नहीं हुए, मान लीजिए आपने कोई फॉर एग्जाम्पल कोई बिल पे करना है, ठीक है, आपके माइंड में चल रहा है वो बिल पे करना है, वो बिल पे करना है, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, यहाँ माइंड में दैट फाइल इज देयर एंड इट इज यूजिंग योर एनर्जी, इट इज यूजिंग योर एनर्जी। जो भी हमारे अनफिनिश्ड एजेंडाज, अनफिनिश्ड काम है, या हमारी अनफिनिश्ड कॉन्वर्सेशन है, किसी से हमारी बात हुई, उसने हमें कुछ कह दिया, उस टाइम तो हमने कोई रिप्लाई करा नहीं, घर आके यहाँ चल रही है कॉन्वर्सेशन, मुझे ना ये बोल देना चाहिए था, मुझे ना ये बोलना चाहिए था, हाउ डेयर ही, मुझे उसने ऐसे बोल के, ऐसे कंटिन्यूअसली हमारा माइंड चैटर बॉक्स बन के चैटर करता रहता है, और उसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। तो वी हैव टू लर्न अबाउट दीज एनर्जी ब्लॉकर्स, जिससे कि हम, भाई देखो, यहाँ रखने का तो कोई फायदा है नहीं, या तो बोल दो और खत्म करो, और या फिर यहां से डिलीट करने की हिम्मत रखो, या तो माफ करने की हिम्मत रखो, पेन्स को, हर्ट को यहाँ ब्रेन में रख के कुछ नहीं हो रहा, ओनली एंड ओनली यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस। किसी का कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है, आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, आपका फोकस कम हो रहा है, उसकी वजह से आपका फोकस कम हो रहा है, तो आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो वी थिंक कि अगर हम, मैं उसको कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा, इस सेंटेंस के साथ हम सोचते हैं कि हम किसी दूसरे का बिगाड़ रहे हैं कुछ, जी नहीं, you are only and only depleting your own energy, you are only and only harming your own self। किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, आपका सिर्फ अपना बिगड़ रहा है, राइट? सो अभी के अभी जस्ट लेट इट बी, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं हो जाएगा, अपने सेल्फिश हो जाओ, आई ऑलवेज से, एंड यू आर दी जनरेशन, अगर आप सही तरीका जिंदगी जीने का सीख लेंगे तो आई थिंक आगे बहुत जनरेशन सुधर जाएंगी। कुछ नहीं रखा यहाँ पर, हर्ट, पेन, रिजेंटमेंट को रखने में कुछ नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी एनर्जी डिप्लीट हो रही है। टेक अ प्लेज टुडे कि आई विल लेट इट गो, आई विल लेट इट गो बिकॉज आई लव माई सेल्फ। मैं अपने माइंड में इस गार्बेज को जगह दूंगा तो मेरे गोल्स के लिए जगह कहां से बचेगी, राइट? सो लेट इट बी, सारे अनफिनिश्ड एजेंडाज को खत्म करना है, लेट इट बी, ठीक है, डन। अब जो हमारा इसका दूसरा पॉइंट था वो था न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इफ वी आर ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ गुड न्यूट्रिशन, और अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर होता है तो हमारे फोकस लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं। दो विटामिन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट इनका कनेक्शन है फोकस के साथ, वो होते हैं विटामिन डी एंड विटामिन B12। और ये हमारी बॉडी में आजकल, मतलब ऐसा टाइम हो गया कि सबकी बॉडी में इनके जो लेवल्स हैं वो नॉर्मल लेवल से कम। तो यू हैव टू मेक श्योर, कई बार क्या होता है कि आपकी पूरी विल भी होती है, आपने शायद नोटिस भी किया होगा, हमारी पूरी विल है, पूरी इच्छा है हमारी कि हम दिल लगा के, मन लगा के काम करें, ठीक है, पूरी डिजायर है, पूरे आप क्लियर भी है कि मुझे आज ये काम करना है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। विटामिन डी एंड विटामिन B12, डी, विटामिन डी होता है पूरा कि कोई रीजन नहीं था, बट आई वॉज नॉट फीलिंग दैट एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड। तो अपने विटामिन डी लेवल्स और B12 लेवल्स हमेशा चेक कराते रहिए, आफ्टर गैप ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ में एक बार तो करा ही लीजिए। और उसके बाद अगर वो लेवल में नहीं आते हैं, सही रेंज में नहीं आते हैं, आस्क योर फिजिशियन टू गिव यू द सप्लीमेंट्स। अपने आप पॉप नहीं करने हैं सप्लीमेंट्स कभी भी। ये नहीं कि आज मैंने बोल दिया कि विटामिन डी कम है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आप जाके कल विटामिन डी खा रहे हैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इज माई वॉइस क्लियर? शो मी अ थम्स अप एवरीवन। प्लीज चेक योर नेटवर्क में भी देन, राइट? तो हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये नहीं करना है कि अब जाके चलो जी विटामिन डी खा लेते हैं क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पा रहा तो शायद विटामिन डी कम होगा, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू गेट योर लेवल्स चेक्ड, यू हैव टू गेट रेफर्ड बाय अ फिजिशियन कि कितना खाना है और कैसे खाना है, बिकॉज ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया जाए तो टॉक्सिक हो जाते हैं, ठीक है? तो गेट योर लेवल्स चेक्ड कि वो बिल्कुल रेंज में हो, क्योंकि कई बार हम नहीं फोकस कर पा रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑल्सो, राइट? लेट्स मूव ऑन टू दी next one, which is the lack of deep sleep. I meet people nowadays who tell me, मैम मैं तो ना 10 घंटे सोता हूँ फिर भी मैं फ्रेश नहीं उठता, because we are sleeping on the surface only. On the surface only, we are not taking a deep sleep. There are certain principles which have to be followed.
जिनसे कि हम डीप स्लीप में जा पाते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाता। वी हैव सीन देयर आर सो मेनी पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड के भी कितने एक्टर्स हैं जो बोलते हैं ना, जो कि 4-5 घंटे ही सोते हैं सिर्फ। देखते हैं ना ऐसे लोग हम, जो 4-5 घंटे सो के भी लाइफ में इतना बढ़िया काम करते हैं, और हम कहते हैं हम 10 घंटे भी सो लेते हैं उसके बाद भी हम फ्रेश नहीं है, क्योंकि हमारी स्लीप की क्वालिटी कैसी है उस पर हम ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ क्वांटिटी पे अटके रह जाते हैं कि मैं 8 घंटे सो लिया, मैं 10 घंटे सो लिया, बट आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश, बिकॉज वी हैव नॉट टेकन क्वालिटी स्लीप, वी हैव ओनली टेकन क्वांटिटी। टाइम देख के 8-10 घंटे तो हम सो लिए, बट वो स्लीप की क्वालिटी कैसी थी। वी विल टॉक अबाउट वेज हाउ यू कैन मेक योर स्लीप मोर डीपर, सो दैट यू एक्चुअली फील रेजुविनेटेड आफ्टर द स्लीप। स्लीप का पर्पस यही होता है कि आपकी बॉडी के सेल्स को वो रेजुविनेट करे, रिस्टोर करे, और जितने बॉडी सेल्स आपके रेजुविनेट होंगे उतना ही आपका फोकस बेटर होगा। ऑब्वियस है ना ये तो, क्योंकि फोकस क्या है, देखिए फोकस इज लाइक अ मसल। आप जिम जाते हैं, ठीक है, जिम में जाके आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग में अगर आप वेट उठाते ही जाएंगे तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम योर मसल्स विल गेट टायर्ड। ब्रेक देना पड़ता है ना बीच में, 3 सेट्स मारते हैं 20-20 के, तो बीच में गैप देना पड़ता है ना। क्यों देना पड़ता है? बिकॉज योर मसल्स नीड द रिस्टोरेशन। ब्रेक देके उनको हमें रीएनर्जाइज करना पड़ता है। और हमारा जो फोकस है, इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक आवर मसल्स। फोकस इज ऑल्सो अ मसल। तो इसको भी अगर ये थक जाएगा तो उसको हमें रिचार्ज रिस्टोर करना पड़ेगा। और वो कैसे होता है? सबसे ज्यादा वो होता है ड्यूरिंग योर डीप स्लीप, जब आप एक्चुअली सो रहे हैं, सिर्फ आंखें बंद करके बेड पे लेटे नहीं हुए, जब आप एक्चुअली सो रहे हैं, योर फोकस गेट्स रीस्टोर्ड एंड रिचार्ज। तो अ डीप स्लीप की तो जितनी मतलब रिक्वायरमेंट बोली जाए ना उतनी कम है, बट दिस इज ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड अ लॉट नाउअडेज। दिस इज कॉम्प्रोमाइज्ड अ लॉट नाउअडेज। लोगों को लगता है कि हम कम सोएंगे तो हम शायद ज्यादा काम कर लेंगे, which is such a big myth. Doesn't work like that. Your body doesn't work like that. You have to learn the right principles. You have to learn the right ways to use your body and your mind. Right? Let's move on to the next one, which is lack of movement and sunlight. मतलब ये जो चीजें हमें फ्री में मिली हुई है ना, उनको तो हम वैसे ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना फॉर ग्रांटेड, क्योंकि सनलाइट फ्री है तो उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि मूवमेंट करना हमारे हाथ में है तो उसकी वैल्यू नहीं है। लैक ऑफ मूवमेंट इज सच अ मेजर फैक्टर which does not keep your body fit. आज की डेट में क्या होता है, मतलब it is said that our body is designed to move and our mind is designed to remain still. आज के टाइम में हम उल्टा कर रहे हैं। बॉडी जो है वो मूव करने के लिए बनी है और माइंड जो है वो शांत रहने के लिए बना है। और आजकल हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को तो हम मूव कर नहीं रहे, बैठे हैं पूरा दिन एक ही चेयर पे, बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं, और माइंड हमारा शांत रह नहीं रहा, वो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ मूव करके आ रहा है, कहाँ पास्ट फ्यूचर हर जगह घूम के आ रहा है। दिस इज द ब्लंडर दैट वी हैव बीन क्रिएटिंग फॉर सो मेनी डेज नाउ। कब से हम ये गलत कर रहे हैं कि बॉडी को मूव करा नहीं रहे और माइंड को इतना ज्यादा मूव करा रहे हैं जितने की रिक्वायरमेंट नहीं। जब हमारी बॉडी मूव करती है, whenever you are working out, and by working out I do not mean that you have to go to the gym and work out for 2-3 hours. I do not mean that. Even if you are going for a simple walk of 15 or 20 minutes, तो हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स क्या है? एक बहुत ही मच नीडेड हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी को चाहिए टू फील गुड, टू फील प्रोडक्टिव। तो जब हम मूवमेंट करते हैं बॉडी में तो वो एंडोर्फिन अपने आप रिलीज होता है, और जब वो रिलीज होता है देन हमारा फोकस इंप्रूव होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इसके साथ, इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे मूवमेंट करनी है, कि आप जब भी अपना कोई काम कर रहे हैं, अगर आपने थोड़ी देर वो काम करा है ऑफिस की चेयर पे बैठ के, यू हैव टू गेट अप इन बिटवीन एंड यू हैव टू टेक अ ब्रेक। गो एक वॉक करके आ जाओ 2 मिनट की, उठ जाओ, वहीं चेयर पे बैठे बैठे स्ट्रेचिंग कर लो, बिकॉज बॉडी अगर मूव नहीं करेगी तो वो स्टक हो जाएगी और एक टाइम के बाद फोकस नहीं कर पाएगी। ठीक है। सनलाइट सच इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक तो विटामिन डी फ्री में मिल जाता है, ठीक है ना, सैशेस भी नहीं खाने पड़ेंगे। विटामिन डी मिलता है सनलाइट से, हमें सबको पता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास, हमें वैल्यू नहीं है, फ्री मिल गया ना चीज, इसलिए उसकी हमें वैल्यू नहीं है। यू मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स इन द सनलाइट एवरी डे। कम से कम 10 से 15 मिनट आपको सनलाइट में हमेशा गुजारने चाहिए। नाउ हैव सम कॉमन सेंस। अब ये मत करना कि पता चले 12-1 बजे जाके देख रहे हो सन को और फिर आगे बोल रहे हो मैम ने कहा था, मेरे को तो सनबर्न हो गया। कॉमन सेंस रखनी है। ऑब्वियसली आई मीन द अर्ली मॉर्निंग सनलाइट, राइट? दिन के टाइम नहीं, जब सनबर्न हो जाए।
ठीक है, अर्ली मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है उसमें विटामिन डी भी मिलता है और वो हमारे फोकस को, हमारे एनर्जी लेवल को बेटर करने में बहुत बहुत हेल्प करती है। तो यू मस्ट मस्ट स्पेंड सम टाइम इन द सन। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट पर, विच इज शैलो ब्रीदिंग एंड डिहाइड्रेशन। इसको जरा हम ध्यान से समझेंगे, शैलो ब्रीदिंग एंड डिहाइड्रेशन को। देखिए जी, ब्रीदिंग से हमें मिल रही है ऑक्सीजन, डिहाइड्रेशन इज कनेक्टेड टू द वाटर कंजम्पशन। ऑक्सीजन एंड वाटर आर द लाइफ फोर्सेस। इसके बिना हमारी जिंदगी चल सकती है क्या? नहीं चल सकती ना। ऑक्सीजन और वाटर के बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती है। और आज के टाइम में हम क्या करते हैं, वी हैव एक्चुअली बिकम शैलो ब्रीदर्स। कैमराज क्यों ऑफ हो गए? एक बार कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो प्लीज, एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज, स्विच ऑन योर कैमराज। और एक बार सब चेक करेंगे, स्विच ऑन योर कैमराज गाइस, आई कांट सी यू, सो मेनी ऑफ यू। ठीक है, क्लोज योर आईज और एक बार चेक करेंगे कि आप जब ब्रीथ करते हैं, नॉर्मली ब्रीथ करना है, कुछ नहीं करना, नॉर्मल जैसे आप ब्रीथ करते हैं वैसे ही करेंगे, तो आपकी ब्रेथ कहां तक जा रही है? इज इट गोइंग टिल योर नेक और इज इट गोइंग टिल योर चेस्ट और इज इट गोइंग टिल योर नेवल? गले तक जा रही है, चेस्ट तक जा रही है, या नीचे आपके टमी तक जा रही है? एक बार चेक कीजिए आंखें बंद करके, एक नॉर्मल ब्रेथ लेके, कहां तक जा रही है आपकी ब्रेथ? कहां तक जा रही है जरा बताएंगे? चेस्ट, चेस्ट, चैट बॉक्स में लिखेंगे। एक ब्रीथ लेके बस चेक करना है, एक बारी ब्रेथ लेके बस चेक करना है, कोई बैठ नहीं जाना है मेडिटेशन करने। चेस्ट से थोड़ा नीचे, ओके, चेस्ट, 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 नेक, बाकी बाकी बाकी। ओपन योर आईज, आंखें बंद करके तो नहीं बैठ गए? ओपन योर आईज, नेक, चेस्ट, नेक, चेस्ट, बिटवीन चेस्ट, 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 स्टमक तक। थैंक गॉड, एटलीस्ट आई गॉट वन पर्सन, क्योंकि दैट इज द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। एंड सी हाउ शैलो ब्रीदर वी हैव बिकम अननोइंगली। यहां तक ब्रेथ जा रही है या चेस्ट तक ब्रेथ जा रही है, इसका मतलब हमारी ब्रेथ बहुत ज्यादा शैलो है। जो एक्चुअल वे ऑफ ब्रीदिंग होता है वो होता है कि आपकी जो ब्रेथ है वो पूरी नेवल तक जाए, पूरी नेवल तक ब्रेथ जानी चाहिए और वहीं से वापस आनी चाहिए। दैट इज द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि शैलो ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ? देखो, कॉमन सेंस की बात है। अगर आप ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, आप शैलो ब्रीथ कर रहे हैं, छोटी छोटी ब्रेथ्स ले रहे हैं, तो आपके अंदर कम ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है, कम ऑक्सीजन जा रही है, कम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो आपके ब्रेन को भी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम मिल रही है। राइट, दिस इज सिंपल कॉमन सेंस, राइट? आपने छोटी ब्रेथ्स ली, शैलो ब्रेथ्स ली, तो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल रही है। तो जब आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है तो वो कैसे फोकस करेगा? जितना बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बेटर होगा उतना ही आपका फोकस बेटर होगा, उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। लाइफ फोर्स है ना ऑक्सीजन, ब्रेथ तो चाहिए ना, ऑक्सीजन तो चाहिए ना। एक नहीं आए ब्रेथ तो खत्म है लाइफ यही। राइट, दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। और अननोइंगली हमारी लाइफ का जो स्ट्रेस है आजकल, जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस लेवल्स, एंजाइटी लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो जब भी हम एंशियस होते हैं तो अननोइंगली हम शैलो ब्रेथ्स लेने लग जाते हैं। और आजकल क्योंकि हम कंटिन्यूअसली स्ट्रेस्ड ही रहते हैं, कंटिन्यूअसली हम सोच ही रहे हैं कुछ ना कुछ, प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं 99% ऑफ द टाइम, तो क्या होता है, हमारी जो ब्रेथ है वो परमानेंटली शैलो हो गई है। आपने खुद देखा, एवरीवन रोट इट टिल चेस्ट, ऑलमोस्ट एवरीवन, देयर वाज जस्ट वन पर्सन जिसने बोला कि स्टमक तक जा रही है। The right way of breathing is when your breath is actually coming and going out till your navel. ठीक है, और इसको इंप्रूव करना बहुत इजी होता है। वील टॉक अबाउट सर्टेन ब्रीदिंग टेक्निक्स ऑल्सो, कि उसको कैसे इंप्रूव करना है। वो मैम वो अपने आप आ जाता है दिमाग में, जितना इग्नोर करो नहीं आने देना है दिमाग में। वील टॉक अबाउट द टेक्निक्स कि कैसे अपने माइंड को खाली करना है। वील एक्चुअली टॉक अबाउट इट कि कैसे अपने माइंड में से सारे थॉट्स जो भी चल रहे हैं, जो भी यहाँ पे हमने बात करी, मेंटल जो क्लटर है इतना सारा, उसके साथ कैसे डील करना है। वील टॉक अबाउट इट। शैलो ब्रीदिंग के साथ नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्यूज मी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है? व्हेन आवर बॉडी इज नॉट गेटिंग द राइट क्वांटिटी ऑफ वाटर, when our body is not getting the right quantity of water, it gets into the dehydration mode। और डिहाइड्रेशन वाले मोड में हमारी बॉडी का फोकस लेवल बहुत 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 कम हो जाता है। तो इसका वे आउट क्या है कि आप जब भी कुछ काम कर रहे हैं, whenever you are trying to do any productive work, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, where you want to focus, you have to sit with a bottle of water। You have to sit with a bottle of water and you have to keep taking sips of water after every 15-20 minutes।
अगर आपने प्यास लगने पर पानी पिया तो लिमिट तो आपने ऑलरेडी क्रॉस कर दी। प्यास हमें तब लगती है जब हमारी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है, तो तब तक की वेट नहीं करनी है। whenever you are doing any productive work, whenever you are doing any work where you want to focus, you have to keep taking sips of water in between. Never ever sit for your work without a water bottle. Never ever. Have a sip of water, everyone. I'm going to have one. It's been almost 1 hour. I need a sip of water. ठीक है, तो hydration is very very important. ठीक है जी, अब हम पहुंचते हैं अगले पे, जो कि है मेरा फेवरेट, जो कि है मेरा फेवरेट बिकॉज पीपल थिंक दिस इज कंट्रीब्यूटिंग टू देयर फोकस while it is डिप्लीटिंग देयर फोकस। मल्टीटास्किंग किस किस को यहाँ पर लगता है, जरा मुझे बताइए, ये इससे कौन कौन एसोसिएट कर रहा है इस फिगर से कि हम सब कुछ कर लेंगे। टीवी में मूवी भी चल रही है, हाथ में फोन भी है, दूसरे हाथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी है जो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट मल्टीटास्किंग से तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ ही रही है ना, एक टाइम पे 4 काम कर रहे हैं हम। किस किस को लगता है? मी मी मी। मी। लेट मी टेल यू वन थिंग, कि जो हमारा माइंड है ना, दिस इज नॉट डिजाइंड फॉर मल्टीटास्किंग। ये ऐसा बना ही नहीं है कि मल्टीटास्किंग कर सके। This is not designed for multitasking. Multitasking only and only depletes our memory. What does it do? Only and only depletes our memory, our focus, our energy. क्योंकि हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं, हम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे होते हैं? मल्टी स्विचिंग। We are simply switching from one task to the other task. We are not multitasking. We cannot multitask. हमने अभी अभी समझा कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है? 126 बिट्स, ठीक है। और एक 126 में से 30 तो निकाल ही दो ना, वो तो चली गई इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में। तो हमारे पास बचते ही कितने हैं? 90 बिट्स। और एक सोर्स से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें चाहिए 70-80, वो हमने यहां से ले लिए। अब साथ में हम दूसरा काम भी कर रहे हैं, तो उसको हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा ना। तो ना हम इस पे फोकस कर पाएंगे, ना हम इस पे फोकस कर पाएंगे। वी आर सिंपली शिफ्टिंग आवर फोकस फ्रॉम वन टास्क टू दी अदर टास्क, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से फिर दूसरा, दूसरे से फिर पहला। हम सिर्फ स्विचिंग कर रहे हैं। वी आर नॉट मल्टीटास्किंग। उससे बढ़िया क्या होता है कि आप एक काम पकड़ो, उस पर फोकस करो, टोटल 126 में से जो 90 आपके पास बिट्स हैं वो टोटल उसमें लगाओ, एंड यू विल बी अमेज्ड एट द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट यू विल बी एबल टू डू, इंस्टेड ऑफ डूइंग 2, 3, 4 थिंग्स टुगेदर। मल्टीटास्किंग से आपका फोकस या प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, दिस इज अ सिंपल एंड प्लेन मिथ, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। एक ना कंसेप्ट होता है, ध्यान से समझेंगे इसको, एक कंसेप्ट होता है अटेंशन रेजिड्यू का। अब आप खुद देखो, आपने, चलो काम की भी बात नहीं करें, आपने कोई मूवी देखी मान लो, ठीक है, आप गए मूवी देखने, आपने 2, 2.5, 3 घंटे वो मूवी देखी। अब जब आप वो मूवी खत्म होती है, आप मूवी थिएटर से निकलते हैं, ठीक है, और अपना घर आते हैं, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो मूवी चल रही होती है ना, कुछ ना कुछ उसका कोई सीन, कोई डायलॉग, कुछ ना कुछ यहाँ रह जाता है। दैट इज कॉल्ड अटेंशन रेजिड्यू, ठीक है। अब होता क्या है, जब आप एक काम कर रहे होते हैं, जब भी आप कोई भी काम करते हैं, मूवी देखना, बुक पढ़ना, फोन पे बात करना, चैट करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, कोई भी काम आप करते हैं, जब आप वो काम रोकते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट इन द फॉर्म ऑफ अटेंशन रेजिड्यू यहाँ पर रह जाता है। तो अब क्या होता है, देखिए, मान लीजिए आप टास्क कर रहे हैं, कोई भी एक काम कर रहे हैं, आपने वो छोड़ा, बीच में कुछ और आ गया, फोन बज गया, नोटिफिकेशन आ गई, आपने फोन उठाया कि 2 सेकंड ही तो लगेंगे, एक रिप्लाई तो करना है, आपने जाके वहां रिप्लाई कर दिया, लेकिन हुआ क्या, जो टास्क 1 थी उसका अटेंशन रेजिड्यू आप अपने साथ लेके गए, ठीक है। और जब आपने वो उसको रिप्लाई कर दिया और आप वापस आए टास्क 1 पे, तो उस टास्क का, वो रिप्लाई करने का अटेंशन रेजिड्यू आप अपने साथ लेकर आए। अब आपके ब्रेन को फिर से लगेंगे 10 मिनट दोबारा से वही वाला फोकस बिल्ड करने में, उस अटेंशन रेजिड्यू को खत्म करने में आपके ब्रेन को फिर 10 मिनट लगेंगे, और 10 मिनट में आई एम श्योर कोई ना कोई और नोटिफिकेशन आ जाएगी, और फिर आपको लगेगा 1 मिनट ही तो लगना है सिर्फ। बट दिस इज हाउ यू आर किलिंग योर ओन फोकस। 1 मिनट ही तो लगना है, 1 मिनट ही तो लगना है, कि चक्कर में ही सारे फोकस की गड़बड़ हो गई है, राइट। सो वेन एवर यू आर डूइंग एनी वर्क, डू इट विद कंप्लीट फोकस, एक्चुअली लिटरली। ये मत सोचिए कि मैं मल्टीटास्क कर लूंगा,
एक बार करके देखिएगा. वील डिस्कस अ टेक्निक जिसमें कि हम फोकस के साथ एक काम करते हैं. वील डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें कि हम सीखते हैं कि कैसे हम फोकस करके एक ही टास्क को कंप्लीट करते हैं. एंड यू विल बी अमेज्ड एट द क्वालिटी ऑफ द वर्क दैट यू विल डू. ठीक है. तो ये तो हो गए हमारे सारे दुश्मन, हमारे सारे फैक्टर्स जो कि हमारे को फोकस लाइफ में नहीं क्रिएट करने दे रहे हैं. अब इन दुश्मनों से लड़ने की तो तैयारी करनी है कि नहीं करनी? दुश्मनों को मारना भी तो है, क्योंकि we have to be successful in our life. This is one affirmation that you must do. You all must do on a regular basis that I am successful. ठीक है. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे की, that how we are going to achieve focus mastery. फोकस को पढ़ लिया हमने, फोकस क्या होता है हमने देख लिया, कौन से फैक्टर्स हैं विच आर किलिंग आवर फोकस. अब फोकस मास्टरी कैसे करनी है ना, अचीव कैसे करना है फोकस को लाइफ में. ठीक है. सबसे पहले हम बात करेंगे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हमने अभी बात करी है, ब्रीदिंग. हमने सबने देखा दैट वी आर नॉट टेकिंग द राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी. सबने लिखा ना, चेस्ट जितने भी लोगों ने रिप्लाई करा, सबने लिखा ना कि शैलो ब्रीथ करते हैं. तो जब हम शैलो ब्रीथ करते हैं तो हमारे ब्रेन को राइट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. तो वी विल लर्न सर्टेन ब्रीदिंग टेक्निक्स, वील डू इट हियर ऑल्सो सो दैट यू अंडरस्टैंड देम वेरी वेल एंड यू आर एबल टू इनकॉर्पोरेट देम इन योर लाइफ. अपनी लाइफ में आप उनको एक्चुअली अप्लाई कर पाए. बिकॉज इट इज सेड दैट इफ यू कैन कंट्रोल योर ब्रीदिंग, यू कैन कंट्रोल योर लाइफ फोर्स. ऑक्सीजन लाइफ फोर्स है ना, लाइफ है हमारी. तो अगर ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लिया, लाइफ फोर्स को कंट्रोल कर लिया. इसमें जो पहला चीज होती है वो होता है डीप ब्रीदिंग. अब डीप ब्रीदिंग के लिए आपको इट हैज टू बी मेड अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. दिस हैज टू बी मेड अ लाइफस्टाइल. ये नहीं कि सुबह उठ के 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करते हैं, फिर पूरा दिन हम शैलो ब्रेथ्स लेते हैं. नो, आई एम नॉट अगेंस्ट डूइंग डीप ब्रीदिंग इन द मॉर्निंग. यू शुड डू दैट, यू मस्ट डू दैट, दैट्स वेरी बेनिफिशियल. बट दिस हैज टू बी मेड अ लाइफस्टाइल. और ये बहुत आसान होता है. आप खुद देखिए, आंखें बंद करके अगर आप अवेयरनेस भी अपनी लेके जाते हैं ना वहां पर कि मुझे ब्रीथ, मेरी ब्रेथ कहां तक जा रही है, तो वो अपने आप डीप होने लग जाती है. तो ब्रेथ को डीप करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले तो अवेयरनेस चाहिए. ड्यूरिंग द डे जस्ट ट्रेन योर माइंड, जस्ट कीप रिपीटिंग इट फॉर सम टाइम. उसके बाद माइंड को आदत पड़ जाएगी कि मेरी ब्रेथ कहां तक जा रही है. आई हैव टू ब्रीथ डीपली, आई हैव टू ब्रीथ डीपली. तो जब आप दिन में 2 4 5 10 बार ये अटेंशन देंगे हर थोड़ी देर में कहां तक जा रही है, तो वो अपने आप धीरे धीरे डीप होने लग जाएगी. एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग मोर ऑक्सीजन इन योर ब्रेन, इन योर बॉडी, इन योर माइंड. ठीक है. तो अपनी ब्रेथ पे अवेयरनेस लेके आनी है, सिर्फ अवेयरनेस लानी है. इसके लिए अवेयरनेस ही बहुत होती है, क्योंकि जैसे ही अवेयरनेस आएगी यू विल टेक अ डीप ब्रेथ. जैसे ही अवेयरनेस आएगी यू विल टेक अ डीप ब्रेथ. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग होता है. बॉक्स ब्रीदिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है दैट व्हेनेवर यू आर फीलिंग एंग्शियस, आपने किसी काम को करना है, ठीक है, लेकिन यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, यू आर फीलिंग एंग्शियस, तो आप फोकस कर पाएंगे? इफ यू आर फीलिंग एंग्शियस, विल यू बी एबल टू फोकस ऑन द वर्क दैट यू वांट टू डू? कर पाएंगे आप फोकस? दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि जब आप इतना एंग्शियस और इतना स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं तो फोकस कैसे होगा? तो बॉक्स ब्रीदिंग वर्क्स ब्यूटिफुली टू काम योर माइंड. इंस्टेंटली आपका माइंड काम फील करने लग जाता है व्हेन यू बॉक्स ब्रीथ. बॉक्स ब्रीदिंग क्या होती है? एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ काउंट हम ले लेते हैं जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो. बिगनिंग में सपोज 5 सेकेंड्स, ठीक है. 5 सेकेंड्स के लिए आप इनहेल करते हैं, 5 सेकेंड्स के लिए आप ब्रेथ को होल्ड करते हैं, 5 काउंट्स के लिए आप एक्सहेल करते हैं, एंड देन 5 काउंट्स के लिए आप अगेन होल्ड करते हैं. तो एक बॉक्स बन जाता है. 5 इनहेल, 5 होल्ड, 5 एक्सहेल, 5 होल्ड. ऐसे करके आप एटलीस्ट 7 to 8 राउंड्स करते हैं इसके, तो आपका वो एक पूरा बॉक्स क्रिएट हो जाता है, एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है. धीरे धीरे यू कैन इंक्रीज दैट काउंट. शुरू आप 4-5 से ही करेंगे, बिकॉज हमारी बॉडी को हैबिट नहीं होती है. एक्सेल, आई डेंट गेट यू अनुराग, आई एम सॉरी. ठीक है, एक बार मैं आपको करा के दिखाती हूँ. स्विच ऑन योर कैमरास, मेरे साथ करेंगे एक बार, सो दैट प्रैक्टिकली समझ में आए. सिर्फ एक वो थ्योरी आप लेके ना चले जाए, मैं नहीं चाहती हूँ ये. एक बार मेरे साथ करेंगे सब लोग, सो दैट यू अंडरस्टैंड कैसे करना है. ठीक है. 5 का काउंट हम ले रहे हैं, तो करना क्या है? 5 सेकेंड इनहेल, मेरे साथ साथ करेंगे. आई विल काउंट 5 सेकेंड्स इनहेल, 5 सेकेंड्स होल्ड, 5 सेकेंड एक्सहेल एंड 5 सेकेंड्स होल्ड. इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड. ठीक है, करेंगे तो समझ आ जाएगा. ठीक है अनुराग, करते हैं, समझ आ जाएगा, राइट? क्लोज योर आईज,
Close your eyes and breathe in. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Open your eyes. This is box breathing. How many of you are feeling थोड़ा सा relief सा feel हो रहा है? अभी तो 2 ही cycle कर रहे हैं. Minimum 7 करने होते हैं. अभी तो मैंने 2 ही करे हैं because we have a lot to cover. Yes, ma'am. Because हमने ऑक्सीजन सप्लाई देना बंद कर दिया है बॉडी को. यहीं पर छोड़ देते हैं हम. जाती ही नहीं है बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर्ली. अभी तो सिर्फ 2 राउंड्स कर रहे हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You will feel immense amount of energy if you start doing box breathing on a regular basis. Or instantly you will feel calmer. ठीक है, instantly you will feel calmer and more in control of yourself. It works. It absolutely works. ठीक है, समझ आ गई बॉक्स ब्रीदिंग सबको? शो मी अ थम्स अप. क्लियर हो गई बॉक्स ब्रीदिंग? सब प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देयर इज वन मोर फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है ये, बट विद प्रैक्टिस ये भी आप इसको भी मास्टर कर सकते हैं. कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि थोड़ा होल्ड करना मुश्किल लगता है कई बार. दिस इज X4X 2X ब्रीदिंग. ये बॉक्स ब्रीदिंग के बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है. एक बार आपने बॉक्स ब्रीदिंग में मास्टरी कर ली, थोड़ा आपने 5 सेकंड्स तक 5 काउंट्स तक होल्ड करने की आपको हैबिट हो गई, देन वी रीच ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप क्या है? X4X 2X ब्रीदिंग. इसको ध्यान से समझेंगे. इसमें X क्या है? X इज द नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ इनहेल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने X 5 ले लिया, 5 ले लिया आपने. ठीक है, 5 काउंट्स ऑफ इनहेल. 4X हो गया, 4 into 5 20 काउंट्स ऑफ होल्ड. और 2 into 5 10 काउंट्स ऑफ एक्सहेल. तो इसमें होल्ड वाला जो पार्ट होता है ना वो थोड़ा टफ हो जाता है, बट विद प्रैक्टिस यू कैन बिकम अ मास्टर एट इट. और शुरू में अगर और मुश्किल लग रहा हो तो हम 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं. 4 into 4 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा वो. ठीक है, एक बार करें. लेट्स डू इट वंस. ओके, यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. X इनहेल, 4X होल्ड, 2X एक्सहेल. आई विल गाइड यू साइड बाय साइड सो दैट आपको क्लियर है. जिनके कैमराज ऑन नहीं है ना उनको नहीं करा रही मैं, उनको नहीं समझ आएगा. अब बोलते साथ ही कैमरा ऑन हो जाता है, मतलब मेरे बोलने की वेट होती है. कोई मैं रिमाइंडर सेट कर लूं? नितेश, रिमाइंडर सेट कर लूं कि हर 2 मिनट में बोलना है तो कैमरा ऑन रहेगा. सोनी, बोलते ही कैमरा ऑन हो जाता है, मतलब बैठे हम वही है, सुन हम सब रहे हैं, लेकिन हमने कैमरा नहीं ऑन करना. चलिए X4X 2X को प्रैक्टिस करेंगे. राइट, क्लोज योर आईज. 4 काउंट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. आई डोंट वांट टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू. 4 से स्टार्ट करेंगे. राइट, जब एक बात याद रखनी है, जब आप एक्सहेल करेंगे यू नॉट सपोज टू एक्सहेल लाइक एक बार में नहीं, स्लोली. ठीक है, स्लोली एक्सहेल करना है, एक बार में नहीं करते. राइट, 4 से स्टार्ट करेंगे. क्लोज योर आईज. इनहेल 1 2 3 4. होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhale 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. Open your eyes. We have only done 2 cycles. At least 7 cycles इसके भी करने होते हैं. मुश्किल लग रहा था होल्ड करना क्योंकि हैबिट नहीं है बॉडी को, इसलिए धीरे धीरे बॉडी हैबिचुअल होती जाएगी और एक टाइम के बाद यू कैन इवन गो अप टू 10 काउंट्स, 40 सेकंड्स तक भी होल्ड कर लेते हैं. ठीक है, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बिकम प्रो एट इट. जैसे कि हमने डिस्ट्रैक्शन के केस में देखा, बहुत प्रैक्टिस करिए तो आज प्रो हो गया ना डिस्ट्रैक्शन में. ठीक है जी,
सब कुछ क्लियर दिखने लगा अचानक से। हाँ, क्योंकि अभी तो और दिखाएंगे। वील डू वन मेडिटेशन, आई एम टेलिंग यू, इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स माइंड ब्लोइंग। उसमें तो और बहुत कुछ क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी ब्रीदिंग की। 3 हमने ब्रीदिंग के पैटर्न्स डिस्कस करे, उस पर आपको ध्यान रखना है और उनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है एक्चुअली। नेक्स्ट हम आते हैं डी क्लटर पे। क्लटर की बात करी थी हमने, तो फिजिकल डी क्लटर तो आपने खुद ही करना है। फिजिकल डी क्लटर के लिए क्या करना है, wherever you are working you have to keep that space decluttered। कोई आलतू फालतू का सामान, ये हीरो हीरोइन के पिक्चर्स, कुछ नहीं होना चाहिए वहां पर। एवरीथिंग इज देयर टू डिस्ट्रैक्ट यू। एक अटेंशन जाने की देर है, माइंड ने चेन ऑफ थॉट्स बना लेनी है। मेक श्योर आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका स्टडी डेस्क, आपका वर्क डेस्क बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो। जो आप काम कर रहे हैं बस उतना ही हो जिसमें आपने काम करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अपना रूम, अपना घर हम जितना ऑर्गेनाइज रखते हैं, जितना डीक्लटर्ड रखते हैं, हमारा माइंड भी उतना ही डीक्लटर्ड रहता है। अब हम आते हैं मेंटल डीक्लटर पे, जो कि अभी इतने सारे लोग बोल रहे थे ना, मैम होता ही नहीं है, मैम अपने आप ही आ जाते हैं थॉट्स, है ना। तो मेंटल डीक्लटर के लिए आई विल टेल यू वन टेक्निक, जो कि आप यूज करके एंड यू विल, अगर आप इसको यूज करेंगे, देखिए अभी हमारे पास थोड़ी टाइम की शॉर्टेज रहेगी शायद, और हम नहीं कर पाएंगे यहाँ के यहाँ, बट आई विल एक्सप्लेन इट इन वेरी डिटेल सो दैट यू कैन डू इट ऑन योर ओन। और ये आपने पक्का करना है, और आप देखोगे आपका माइंड कैसे कंप्लीटली डिक्लटर हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले यू हैव टू टेक अ पेन एंड अ पेपर। ठीक है, राइटिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कोई भी काम, सारे काम यहाँ नहीं हो सकते हैं। 7x7 आप यहाँ कर सकते हैं, 797x36 के आप यहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट। तो राइटिंग की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। यू विल टेक अ पेन एंड अ पेपर एंड यू विल लिस्ट योर थॉट्स पॉइंट बाय पॉइंट। जो भी दिमाग में चल रहा है, जो भी दिमाग में चल रहा है, वो आप सब कुछ लिख डालेंगे। एवरीथिंग, कुछ पास्ट का, कुछ प्रेजेंट का, कुछ फ्यूचर का, जो भी चल रहा है, आप यू विल राइट ऑल योर थॉट्स वन बाय वन। तब तक लिखते रहना है जब तक आपको ये लगे कि अब कुछ बचा नहीं लिखने को शायद, और तो कोई थॉट ही नहीं आ रहा, तब तक लिखना है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, थॉट्स ऑक्यूपाई स्पेस इन योर माइंड। तो अब हमने क्या करा, वो सारा स्पेस हमने यहाँ पेपर पे यहाँ बना लिया और यहाँ निकाल दिया। यहाँ हमने स्पेस खाली कर लिया, फिलहाल सारे थॉट्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, लिख लिया आपने सारे थॉट्स अपने पॉइंट बाय पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यू हैव टू पुट अ क्रॉस। यू हैव टू पुट अ क्रॉस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर विल बी सो मेनी थिंग्स which will be beyond your control। आपके कंट्रोल से बहुत दूर होंगी वो चीजें, बट स्टिल वो आपके माइंड में चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट पेंडिंग है, क्या आप उस रिजल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? एग्जाम हो चुका है, आप रिजल्ट की वेट कर सकते हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल द रिजल्ट, बट वो यहाँ चल रहा है, रिजल्ट आना है, रिजल्ट आना है, रिजल्ट आना है। अरे अब एग्जाम हो चुका है, अब जो आएगा वही आना है, कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते आप। तो आप क्रॉस लगाएंगे उन सारी चीजों पर जो कि आर नॉट इन योर कंट्रोल। आपने कोई इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट आना है, कंट्रोल में है क्या आपके वो? नहीं है ना, क्रॉस लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, क्रॉस लगा दिया सारी थॉट्स पे जो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर आपने लगाना है टिक मार्क ऑन द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। जैसा कि मैंने बोला, कोई बिल पे करना है, कोई एग्जाम है, उसके लिए एक चैप्टर भी पढ़ना बाकी है, वो माइंड में चल रहा है, वो चैप्टर बचा है, वो चैप्टर बचा है। कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, माइंड में चल रही है बट हम कर नहीं रहे, तो टिक लगाना है कि ये मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, ये भी हमारे दोनों चीजें रेडी हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है एक सेपरेट पेपर। सेपरेट पेपर लेके जिन भी थॉट्स पे आपने टिक लगाया है, जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके कंट्रोल में है, उनको आपने प्रायोरिटी के ऑर्डर में लिख देना कि कौन सी चीज मुझे अभी करनी है, कौन सी 1 घंटे बाद करनी है, कौन सी 4 घंटे बाद चल जाएगी, कौन सी रात तक खत्म करनी है, कौन सी कल सुबह उठते ही करनी है। पूरी आपने उसको प्रायोरिटाइज करनी है। यू विल बी अमेज्ड एट हाउ सॉर्टेड यू विल फील हियर। आप हैरान हो जाएंगे कि आपको कितना सॉर्टेड फील होगा। जो यहाँ पे क्लस्टर बना हुआ था ना थॉट्स का, वो पूरा लगेगा निकल गया। और पुराने पेपर का क्या करना है, क्या करना है पुराने पेपर का? किस किसने देखी है जब वी मेट? किस किसने देखी है? पुराने पेपर को फाड़ के फ्लश कर देना है, छोड़ देना है उसको। लेट देम गो, दोज थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, लेट देम गो। जो कंट्रोल में था वो आपने अपने पास रख लिया, उसको आप कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि अब आपके पास एक लिमिटेड डेटा है टू वर्क अपॉन, राइट।
तो इस टेक्निक को जब हम यूज करते हैं, यू विल बी अमेज्ड कि जो फालतू के थॉट्स जो यहाँ रखे हुए थे, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं थे, वो सब आपने कर दिए फ्लश। वो सारे आपकी लाइफ से चले गए बाहर। उसको पेपर को फाड़ दो, जला दो, फ्लश कर दो, कुछ भी करो। यू विल बी अमेज्ड एट द स्पेस क्रिएटेड हियर। और जब यहाँ पर स्पेस होगा तभी तो नए आइडियाज आएंगे ना, तभी तो नए थॉट्स आएंगे। जब पहले इतना गार्बेज भरा हुआ है तो फिर नए थॉट्स, नए आइडियाज कैसे आएंगे? ठीक है, कौन कौन प्रॉमिस करता है? राइट डाउन IP इन द चैट बॉक्स। आई प्रॉमिस आई विल डू दिस मेंटल डीक्लटर। आज ही करेंगे आप सोने से पहले, माइंड को पूरा डीक्लटर करके सोएंगे। ऐसे नहीं सोना। मेरे सेशन का फायदा सिर्फ तभी है जब आपको इसका कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट हो। सिर्फ यहाँ 2 घंटे मेरी बात सुन के आप चले जाएं, कुछ करें ना लाइफ में, उसको इम्प्लीमेंट ना करें, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। वेरी गुड, आई प्रॉमिस, वेरी गुड, वेरी गुड सपना। आई प्रॉमिस, वेरी गुड, वेरी गुड। सोने से पहले मेंटली डीक्लटर करना है आज। आई वॉन्ट दिस प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड यू विल गेट टू नो एंड यू विल मैसेज शिवम सर। आप उनको मैसेज करके बताएंगे कि मुझे कितना लाइट फील हो रहा है ये मेंटली डीक्लटर करने के बाद। ठीक है, आई प्रॉमिस। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। इतने सारे आई प्रॉमिस, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। ठीक है जी, हो गया मेंटल डीक्लटर, फिजिकल डीक्लटर। अब हम पहुंचते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निक पे। एक ये कॉन्सेप्ट मैंने सोचा था बताने की कि सर्कल ऑफ कंसर्न, ये क्या होता है ना। देखो, अब ये जो फिजिकल डीक्लटर हमने करा, जो मेंटल डीक्लटर हमने करा, ये तो हम कब करेंगे? मान लो हमने रात को सोने से पहले कर लिया, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग द डे, बाकी दिन जब आप दुनिया में हैं, जब आप जा रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, तब क्या होगा? हर वक्त तो आप पेपर पेन लेके नहीं शुरू हो जाएंगे ना मेंटल डिक्लटर करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये उसके लिए टेक्निक होती है कि आप अपने माइंड को ये चीज बताएंगे दैट देयर आर 2 सर्कल्स इन लाइफ। हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन लाइफ? 2 सर्कल्स। देयर आर 2 सर्कल्स इन लाइफ। एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ कंसर्न क्या होता है? जिसमें उसमें वो चीजें आती हैं जो कि हमारे लिए कंसर्न का मैटर तो है। इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी, हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर है। ठीक है, मोदी, कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, हमारे लिए कंसर्न का मैटर है। बट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है वो सर्कल, वो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। राइट इसको मैं एक एग्जांपल से भी समझाती हूँ, आपको और समझ आ जाएगा। तो जो हाईली प्रोडक्टिव लोग होते हैं ना, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को जरूर यूज करते हैं। जो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा बड़ा करना चाहते हैं, दे ऑलवेज यूज दिस कंसेप्ट ऑफ सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड दोज पीपल ऑलवेज लिव इन दी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। वो उन्हीं उसी सर्कल में रहते हैं जो वो कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, ये होता है सर्कल ऑफ कंसर्न इतना बड़ा, और ये होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बीच में छोटा सा। तो हमें यहां रहना है, यहां नहीं रहना है सर्कल ऑफ कंसर्न में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बारिश हो रही है बाहर, ठीक है, आपने जाना था कुछ सामान लेने, बहुत जरूरी है सामान भी, कोई फालतू सामान नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी सामान है। ठीक है, अब क्या हुआ? बाहर हो गई बारिश। अब आपके सर्कल ऑफ कंसर्न में तो ये है ना, आपने बाहर जाना था और बारिश आ गई है, आपको सामान जरूरी चाहिए था और बारिश आ गई है, तो दिस इज इन योर सर्कल ऑफ कंसर्न। बट इज दिस इन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस? क्या आप सोच के, बारिश को कोस के उसको रोक सकते हैं? जितना मर्जी आप बैठ के क्रिटिसाइज कर लो, सर्कल ऑफ कंसर्न में तो है। आप बैठ के बोल रहे हैं बारिश हो गई है, जब मैंने जाना हो बारिश आ जाती है, पता नहीं क्या ही होगा, अब मेरा काम कैसे होगा, अब ये अब वो। यू आर पुटिंग सो मच एनर्जी इनटू योर सर्कल ऑफ कंसर्न, जबकि वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है। तो आप उस टाइम क्या करेंगे? आप आ जाएंगे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है कि भाई 2 ऑप्शन है, या तो मैं अम्ब्रेला लेके जाके लेके आऊं सामान, और या मैं मान लूं कि अभी बारिश हो रही है, अभी जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं अभी अपना दूसरा ये काम कर लेती हूँ और मैं बाद में जाऊं। 2 थॉट्स आपने क्रिएट करी, सॉर्टेड, खत्म। तो जो हाईली प्रोडक्टिव लोग होते हैं वो सीधा अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो आगे से माइंड में जब भी कोई थॉट्स चल रहे हैं जो भी आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं, फौरन अपने माइंड को क्वेश्चन करना है, इज दिस इन माई सर्कल ऑफ कंसर्न और इज दिस इन माई सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस? अगर तो सर्कल ऑफ कंसर्न में है, लेट इट गो, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। और अगर आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है तो कर लो जो कर सकते हो। राइट, टेक द एक्शन। राइट, यहां बैठ के चैटर बॉक्स करने से कुछ नहीं होने वाला है। आ गया? सबको क्लियर हो गया? तो आप मान लो आप ट्रैफिक में जा रहे हो, ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, फंस गए ट्रैफिक में, बहुत ट्रैफिक है, कार कंप्लीटली स्टक, हिल भी नहीं रही है,
आपने पहुंचना था कहीं बहुत जरूरी, अब आपके सर्कल ऑफ कंसर्न में तो ये है, आपको कहीं जाना था और ट्रैफिक में आप फंस गए हैं, तो ये आपके सर्कल ऑफ कंसर्न में है। अब ये आपके ऊपर है कि आप वहां जो 15 मिनट फंसे हुए ट्रैफिक में, वो बैठ के आप आसपास के ड्राइवर्स को अब्यूज कर लो, ट्रैफिक पुलिस को अब्यूज कर लो, रोड्स को अब्यूज कर लो, सिस्टम ही नहीं है, पुलिस भी नहीं देखती, लोग भी नहीं देखते, रॉन्ग साइड चले जाते हैं, जितनी मर्जी एनर्जी दे लो। या आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाओ। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या है कि या तो उतर के भाई ट्रैफिक करा लो, रिलीज ले लो एक्शन, और अगर वो नहीं ले सकते देन डिसाइड कि अभी नहीं पॉसिबल वो, ठीक है ट्रैफिक, अपने को इंपॉर्टेंट कॉल्स कर लो, कुछ कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस का रिप्लाई करना है वो कर लो, कुछ नहीं कर सकते पुट द म्यूजिक डैम इट और एंजॉय कर लो 10 मिनट, उसमें भी रिचार्ज हो जाएंगे। बट वहां बैठ के 10 मिनट यहाँ वहां लोगों को, ट्रैफिक पुलिस को, लोगों को, रोड्स को कोसने से तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। ऑलवेज लर्न टू लिव इन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। कमिट टू योर सेल्फ, जब भी माइंड में थॉट्स चल रहे होंगे, कमिट टू योर सेल्फ दैट आई विल लिव ओनली एंड ओनली इन माई सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। कहां पर रहेंगे हम? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहेंगे हमेशा। अब हम आते हैं नेक्स्ट थोड़ी प्रैक्टिकल वाली टेक्निक पे, हालांकि सारी प्रैक्टिकल है, आई वोंट से दैट, बट पोमोडोरो टेक्निक, इसमें क्या होता है, ये है कि फोकस्ड काम करना कैसे। ठीक है, ये तो ये आपने जो टेक्निक्स लगाई, मेंटली डिक्लटर कर लिया, सर्कल ऑफ कंसर्न इन्फ्लुएंस चेक कर लिया। पोमोडोरो टेक्निक कैसे अप्लाई करते हैं? जब आपने कोई बहुत फोकस्ड काम करना है, ठीक है, मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, मान लो आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, मान लो आपने, आपका कोई क्लाइंट है, उसके लिए कुछ कुछ उसको कुछ काम करके दे दें, ठीक है, कोई रिपोर्ट्स बनानी है, तो आप क्या करेंगे? पोमोडोरो टेक्निक को यूज करेंगे एंड यू विल बी एबल टू डू दैट वर्क इन अ फोकस्ड मैनर, अगर आप इसको एज इट इज अप्लाई करेंगे। इसके 4 स्टेप्स होते हैं इस टेक्निक के। तो पहला स्टेप होता है आपने टास्क चूज कर ली, ठीक है, पहला स्टेप, जो भी आप टास्क करना चाहते हैं यूजिंग दिस, जो भी आपके माइंड में टास्क है जो आपने पूरी तरह फोकस रह के करना है, आपने वो टास्क चूज कर लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप होता है यू सेट अ टाइमर ऑफ 25 मिनट्स। अपने फोन में आपने 25 मिनट्स का एक टाइमर लगा दिया, ठीक है। टाइमर लगाने के बाद अपने फोन के नोटिफिकेशंस कर दिए बंद, और अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट कर दिया, सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया कि मेरे को 25 मिनट्स तक डिस्टर्ब नहीं करना है। 25 मिनट सिटिंग एट योर प्लेस, आपने पूरे 25 मिनट्स वो काम करा, 25 मिनट्स तक आपने वो काम करा, ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद आपने क्या करना है? यू हैव टू टेक अ 5 मिनट्स रिचार्ज का ब्रेक, इसको मैं बोलती हूँ ब्रेन ब्रेक। अब ये रिचार्ज वाले ब्रेक में फोन नहीं लेके बैठ जाना है, यू विल ईदर हैव वाटर और यू विल गेट अप एंड डू सम मूवमेंट, और यू विल डू सम ब्रीदिंग, ब्रीदिंग भी सीख ली हमने अब, और यू विल डू सम स्ट्रेचिंग में भी थोड़ा बहुत, ठीक है। 5 मिनट आपने ये करना है पूरा अलार्म लगा के, बिल्कुल अलार्म के साथ। और उसके बाद क्या करना है? ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया, एक साइकिल हो गया ये। ऐसे आपने करने हैं 4 साइकिल्स, 4 साइकिल करने हैं। यू विल बी अमेज्ड एट द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट यू विल डू, यू विल बी रियली रियली अमेज्ड एट द क्वालिटी ऑफ वर्क। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जो ब्रेन है ना, इसकी एक कैपेसिटी होती है, 25 मिनट्स के बाद इसका जो फोकस लेवल है ना, वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो ये हो सकता है कि बड़ी शिद्दत से आप उस काम को क्योंकि करना चाह रहे हैं, तो 25 मिनट के बाद आपको लग सकता है कि अभी ब्रेक की जरूरत तो लग नहीं रही, तो कर लेते हैं ना थोड़ा सा और। जी नहीं, आपने वो 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, आपने वो 5 मिनट्स रिचार्ज करना है, तभी आप 4 साइकिल्स कंप्लीट कर पाएंगे। वरना क्या होगा? 25 मिनट्स बाद आप ब्रेक नहीं लेंगे, 20 मिनट और कर लेंगे, 25 और कर लेंगे, 50 मिनट के बाद आपको लगेगा कि बस अब हो गए हम पूरी तरह ड्रेन, और फिर वो काम वहीं रह जाए। तो जो एक्चुअल वे ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक होता है वो पूरे 4 साइकिल्स तक चलता है और 5 मिनट के ब्रेक के साथ चलता है। यू विल बी अमेज्ड, वो 2 घंटे ऐसे निकल जाते हैं कि पता भी नहीं चलता कि आपने कितना काम कर लिया, ठीक है। दिस टेक्निक इज वेरी वेरी वाइडली यूज, यहाँ तक कि कुछ शायद मेरे ख्याल से इसकी एप्स भी आती हैं, पोमोडोरो एप्स, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली टाइमर लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग फोकस वाइब्रेशन। ये एक बहुत ही पावरफुल वे है, मतलब इट वर्क्स लाइक ऑटोमेटिकली, इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली काम करता है। आई रियली बीइंग अ माइंड कोच, बीइंग इन द एनर्जी वर्ल्ड, आई रियली रियली बिलीव इन एनर्जीज, आई रियली रियली बिलीव इन क्रिएटिंग द राइट वाइब्रेशंस, ठीक है। ये बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। इसमें हमने क्या करना होता है? आप मुझे एक बात बताइए, आप सबके घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा सा एक टेम्पल वाला एरिया होता है, हम सबके घर में होता है ना कहीं जहाँ भगवान की पूजा करते हैं। जो लोग भगवान को नहीं भी मानते, घर में कोई और मानता होगा, कोई ना कोई एक एरिया होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप उस एरिया में, इन दैट टेम्पल, क्या आप
शूज पहनकर जाएंगे? आप जाएंगे शूज पहनकर? कैमराज ऑन करो, मैं भूल गई थी वो रिमाइंडर। कैमराज ऑन, अंकित, पूनम, ऋषिका, हर्ष, कैमराज ऑन प्लीज। राज बोलते ही कर लिया, वेट कर रहे थे मेरे बोलने की, है ना? कैमराज ऑन। तो क्या आप अपने घर के उस स्पेस में जहां पर कि आप पूजा करते हैं, या कोई भी आपके घर में पूजा करता है फॉर दैट मैटर, क्या आप फुटवेयर के साथ जाएंगे? क्या आप वहां बैठकर खाना खाएंगे? क्या आप वहां पर विदाउट टेकिंग अ बाथ जाएंगे? मतलब अगर आप पूजा करते हैं ना, तो जिस दिन आपने बाथ नहीं लिया है, शायद आप पूजा नहीं करेंगे, लेकिन बिना नहाए नहीं जाएंगे कि आज पूजा स्किप कर देते हैं, मगर ये तो नहीं कहेंगे ना आज नहाने का मन नहीं है तो बिना नहाए पूजा कर लेते हैं, ऐसे नहीं करेंगे ना, राइट? तो ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि उस जगह की एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन है, जो कि हम किसी भी लो वाइब्रेशन वाले काम को वहां करके स्पॉइल नहीं करना चाहते, राइट? हम कोई भी ऐसा काम जो कि उस वाइब्रेशन से मैच नहीं करता, हम नहीं करना चाहते। हमारे फुटवेयर्स पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कौन सी उनमें गंदगी लगी होती है। खाना खाना अगेन इज अ लो वाइब्रेटरी काम, या ना नहाना इज अगेन सच अ लो वाइब्रेटरी। तो ये काम हम वहां पर नहीं करते ना, क्योंकि हमने उस जगह की वाइब्रेशन को मेंटेन करना होता है। आपने देखा है, अगर आप किसी मंदिर में जाएं, किसी भी मंदिर में आप चले जाओ, किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, जिस भी फॉर्म ऑफ फेथ को आप मानते हैं, वहां पर एक अलग तरह की वाइब्रेशन, एक अलग तरह की फील होती है ना, क्योंकि वहां पर कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो उस जगह की वो वाइब्रेशन बिल्ड की जाती है, वो वाइब्रेशन वहां पर इतने टाइम से, क्योंकि वहां पर वो रूल्स चल रहे हैं, तो वो एक वाइब्रेशन वहां पर बिल्ड हो गई है। तो हमने क्या करना है? हमने क्रिएट करनी है फोकस वाइब्रेशन। फोकस वाइब्रेशन कैसे क्रिएट करते हैं? जो भी आपका वर्क एरिया है, जहां पर भी आप काम करते हैं, चाहे आपकी वो टेबल है, चाहे वो आपका कोई रूम का कॉर्नर है, कोई भी एरिया जहां बैठकर आप अपना काम करते हैं, उसको आपने डेडिकेट कर देना है टुवर्ड्स योर वर्क एंड वर्क ओनली। वहां बैठकर आपने खाना नहीं खाना, वहां बैठकर आपने एंटरटेनमेंट का कुछ नहीं करना, वहां बैठ के आपने अपने मोबाइल पे रील्स नहीं देखनी, वहां बैठ के आपने कोई भी नॉवल नहीं पढ़ना, वहां बैठ के आपने अपने फोन पे अपने फ्रेंड से गप्पे नहीं मारनी फालतू की। आपने उस एरिया की वाइब्रेशन को बिल्डअप करना है बाय डेडिकेटिंग दैट एरिया फॉर ओनली एंड ओनली फोकस्ड वर्क within a period of 66 days. This has been scientifically proved. Within a period of 66 days, you will see that the vibration of that area will start changing, will start shifting. और जब उस प्लेस की वाइब्रेशन बिल्ड हो जाएगी तो क्या होगा? उससे उससे ये होगा कि फिर उसके बाद अब, क्योंकि उस प्लेस की वाइब्रेशन है फोकस की, आप वहां जाके बैठोगे और आपका फोकस अंदर बॉडी में बिल्ड अपने आप होना शुरू हो जाएगा। देयर इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक इन एनएलपी कॉल्ड एंकरिंग। तो वो स्पेस आपने एंकर कर लिया फॉर फोकस, वहां बैठते ही आपको फोकस वाली फीलिंग आने लगेगी अपने आप। मंदिर में हम जाते हैं तो हम बोलते तो नहीं ना शांति चाहिए शांति चाहिए, खुद फीलिंग आती है ना अच्छी वाली, आंखें बंद करते ही घंटी बजाते ही फीलिंग आती है। कैसे आ रही है? क्योंकि उस जगह की वो वाइब्रेशन बिल्ड हो चुकी है। ऐसे ही आपने अपने काम के एरिया की, अपने जो भी आप करते हैं, जहां पर भी आपने फोकस करना, उसकी वाइब्रेशन बिल्ड खुद करनी है। और ये रूल्स आपने खुद बनाने हैं, कोई आपके लिए रूल्स नहीं बनाएगा ये, कि यहाँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, या यहाँ मैं नॉवल नहीं पढ़ूंगा, या यहाँ मैं रील्स नहीं देखूंगा, या यहाँ मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करूंगा। मतलब वेयर आई सिट, nobody has ever stopped me, but where I sit, I do not bring my footwears here. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मेरे काम की जगह है, तो यहाँ पर कुछ भी मुझे लो वाइब्रेशन का नहीं करना है। इफ आई एम हैविंग माई कॉफी, water is a very pious element, only water is allowed here. If I'm having my coffee, I will finish it first. If I'm having my breakfast, I will finish it first, no matter कितनी भी इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए। या तो मैं ब्रेकफास्ट छोड़ दूंगी, या तो मैं कॉफी छोड़ दूंगी अगर कॉल इंपॉर्टेंट है तो, और या फिर मैं उसको फिनिश करके बाद में। These are the rules that I have set. So you have to set certain rules for the area wherever you want to work. कि काम करना है तो यहाँ बैठ के करना है, और यहाँ पर सिर्फ काम ही करना है। 66 days में you will notice कि कितना आपको वहां बैठते ही काम करने की फीलिंग आ जाएगी। ठीक है? तो अपनी फोकस की वाइब्रेशन आप खुद बिल्ड करेंगे। ठीक है जी? करेंगे हम फोकस वाइब्रेशन बिल्ड। शो मी अ थम्स अप अगेन। समझ आ गया सबको? क्लियर है सबको? एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है, तो हमने फोकस की वाइब्रेशन भी क्रिएट कर ली। अब हम आते हैं अपने रूटीन पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
देखिए, जैसे आप अपना एक दिन जीते हैं लाइफ का, जैसे आप अपना दूसरा दिन जीते हैं, तीसरा दिन जीते हैं, वैसे आप अपनी पूरी जिंदगी जी रहे हैं ना। तो जो आपका रूटीन है, डेली बेसिस पर आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, दैट इज क्रिएटिंग योर लाइफ। तो अगर आपका रूटीन पावरफुल नहीं है, फोकस पे बेस्ड नहीं है, तो लाइफ में फोकस बिल्ड करना इम्पॉसिबल है। एंड इफ यू बिल्ड अ पावरफुल रूटीन, इट कैन एक्चुअली मैजिकली ड्रास्टिकली इंप्रूव योर फोकस। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दो चीजों की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मॉर्निंग। मॉर्निंग टाइम इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे। ड्यूरिंग द डे आपने भी देखा है कि हमारे एनर्जी लेवल्स अलग अलग होते हैं। तो सबसे ज्यादा कब होता है, अगर आपने सही स्लीप ली है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि सही स्लीप कैसे लेनी है। तो मॉर्निंग टाइम इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। अगर हमने उसको सही यूज कर लिया ना, तो हमारा डे अपने आप सॉर्टेड होना शुरू हो जाता है। तो पहला रूल तो ये होता है मॉर्निंग के लिए कि आपने उठना है अपना डे स्टार्ट होने से एटलीस्ट 1 आवर, 2 आवर्स बेस्ट होते हैं। मैं अभी एटलीस्ट 1 आवर बोल रही हूँ क्योंकि शायद आप लोग अभी नहीं उठ रहे होंगे। 1 घंटा पहले उठना है। 1 घंटा पहले उठ के क्या करना है, यू हैव टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। व्हेन वी गेट अप वी हैव वेरी फ्रेंडली बैक्टीरियाज इन आवर माउथ। तो उस टाइम अगर एक हम ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं तो बहुत सारा हमारा हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यू हैव टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। यू हैव टू डू सम फिजिकल एक्टिविटी। चाहे आप 10 मिनट जाके वॉक कर लीजिए, कोई नहीं कह रहा कि घंटों घंटों पसीना बहाओ। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ी सी मेडिटेशन, ब्रीदिंग ही कर लीजिए। आज सीखी है ना आपने ब्रीदिंग, ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। मेडिटेशन कर लें तो बहुत बढ़िया है। शुरू में मुश्किल लगता है तो गाइडेड मेडिटेशन कर लो। रीड समथिंग, समथिंग प्रोडक्टिव, समथिंग, डू सम प्रोडक्टिव वर्क, जो भी आप चाह रहे हैं। क्योंकि सुबह आपकी एनर्जी हाईएस्ट है, उसको मोबाइल स्क्रॉल करने में यूज मत करो, और ना ही उठते ही भागने में यूज करो। आंखें खुलते ही बस नहाना है, देर हो गई, ये हो गया, वो हो गया। डू नॉट स्टार्ट योर डे लाइक दिस। द वे यू स्टार्ट योर डे बिल्ड्स द फाउंडेशन ऑफ योर एंटायर डे। जो आपके दिन की शुरुआत होती है वो पूरा फाउंडेशन सेट करती है कि आपका दिन कैसा निकलने वाला है। शांति से अच्छी तरह से दिन स्टार्ट करेंगे तो दिन अच्छा ही निकलेगा। ठीक है। और स्लीप डीप, जैसा कि मैंने बोला था कि खाली आंखें बंद करके बेड पे लेटना नहीं है, एक्चुअली डीप स्लीप लेनी है। उसके लिए एक 1 2 3 फॉर्मूला होता है जो कि हमेशा यूज करना चाहिए। इफ यू स्टार्ट यूजिंग दिस 1 2 3 फॉर्मूला, यू विल फील कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो कितनी इंप्रूव हो गई है। फिर हो सकता है आप 8 घंटे ना भी सोएं। 8 घंटे की नींद कहते हैं जरूरी होती है, लेकिन इफ यू आर टेकिंग अ डीप स्लीप, तो वो 8 घंटे की नींद आप नहीं भी सो रहे तब भी यू विल गेट अप फ्रेश। ये 1 2 3 फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे और अप्लाई करने की कोशिश करेंगे आज से। 1 आवर बिफोर स्लीपिंग, नो स्क्रीन एट ऑल। नो स्क्रीन मतलब नो मोबाइल, नो टीवी। ये जो हमारी बुरी हैबिट है ना आजकल की, आंख फोन में देखते देखते ही सो जाना है, फोन पे गिर जाता है मुंह पे कई बार लेटे लेटे। फोन से जो होता है ब्लू लाइट एमिट होती है, किसी भी स्क्रीन से फॉर दैट मैटर, इवन द टीवी। आजकल तो फोन ही ज्यादा बड़ा कल्प्रिट है। उसमें से ब्लू लाइट एमिट होती है और जब वो हमारी आईज पे डायरेक्टली पड़ती है तो वो हमारे माइंड को कंफ्यूज कर देती है कि मुझे मेरा सोने का टाइम है कि मेरा जागने का टाइम है। जब हम वो ब्लू लाइट एमिट करते हैं, हमारे माइंड में स्लीप हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन रुक जाता है, सेरोटोनिन प्रोड्यूस नहीं होता है, और फिर हमारी जो स्लीप होती है वो माइंड में वही चल रहा होता है जो फोन पे लास्ट देखा होता है। ठीक है। 2 आवर्स बिफोर स्लीपिंग, नो फूड। यू हैव टू हैव योर डिनर बिफोर 2 आवर्स एटलीस्ट। एटलीस्ट 2 आवर्स है, 2.5 3 घंटे कर लोगे तो और बढ़िया है। हैव अ लाइट डिनर, बहुत हैवी नहीं खाना है, बिकॉज अदरवाइज होता क्या है, अगर हम खाना खाते हैं और सो जाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी डाइजेस्ट करने में लगी रहती है, अंदर काम चलता रहता है। तो हम सोना चाह रहे हैं बट आवर बॉडी इज वर्किंग, क्योंकि बॉडी को तो फूड डाइजेस्ट करना है ना। तो वी डू नॉट गेट अ डीप स्लीप। योर स्टमक हैज टू बी एम्प्टी बिफोर यू स्लीप। It has to be empty. The food has to get digested before you go for sleep. And 3 hours, no nervous stimulant. Nervous stimulant क्या होते हैं? Anything that has caffeine in it. No tea, coffee. No alcohol. बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी गलतफहमी होती है कि अल्कोहल के बाद बढ़िया नींद आती है। वो नींद नहीं होती है। टी कॉफी बिल्कुल भी नहीं, 3 घंटे पहले कम से कम। तो अगर हम ये 1 2 3 फॉर्मूला का यूज करते हैं तो वी विल सी दैट आवर स्लीप इज गेटिंग डीपर एंड डीपर। ठीक है। बहुत सारी टेक्निक्स हमने यूज कर ली, इसमें से जो हमने लर्न कर ली, जो आपको लगे कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं, यू विल स्टार्ट फीलिंग। आज तक हमने क्या प्रैक्टिस करा है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस समझा ना हमने,
क्या प्रैक्टिस करा आज तक? डिस्ट्रैक्शन। आज से हम प्रैक्टिस करेंगे फोकस। आई विल प्रैक्टिस फोकस फ्रॉम टुडे। डू दिस एफर्मेशन, आई विल प्रैक्टिस फोकस फ्रॉम टुडे। माइंड को कभी बताएं तो सही कि क्या करना है। माइंड को कभी बताया ही नहीं करना क्या है, हमेशा उसको क्रिटिसाइज ही करा है, तो फोकस ही नहीं करता, तो फोकस ही नहीं करता। आई एम फोकस्ड एंड आई विल प्रैक्टिस फोकस टुडे। ठीक है, ये तो हुई सारी थ्योरी की बातें, सब कुछ बता दिया मैंने आपको। अब आई वॉन्ट टू टेक यू ऑल फॉर अ राइड। टाइम थोड़ा खत्म हो रहा है बट इट्स ओके। ठीक है, लेट्स गो फॉर अ राइड। क्यों? क्योंकि जो हमारा माइंड है इसमें होते हैं 86 बिलियन न्यूरॉन्स। आवर माइंड हैज 86 बिलियन न्यूरॉन्स, और इन न्यूरॉन्स को हमने आज तक दिखाया ही नहीं कि चाहिए क्या। नहीं दिखाया ना, कभी बताया ही नहीं कि लाइफ में चाहिए क्या, उनको पता ही नहीं है। आप लगे वो रेस में, सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, करियर चाहिए। माइंड को नहीं समझ आ रहा। इट डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, इट हैज नेवर सीन, इट हैज नेवर एक्सपीरियंस्ड व्हाट यू आर सेइंग। लेट्स शो आर 86 बिलियन न्यूरॉन्स टुडे कि हम क्या चाह रहे हैं लाइफ में। सबके कुछ ना कुछ गोल्स हैं ना लाइफ में। शो मी अ थम्स अप इफ यू हैव सम गोल्स इन लाइफ, 1 2 3। और हमारे जो गोल्स हैं, जनरली क्या होता है ना, हमारे गोल्स करियर तक ही रह जाते हैं। होता है ना ऐसा। गोल्स का मतलब ही हम यही समझते हैं। गोल मतलब पैसा कमाना है, गोल मतलब अच्छी जॉब, गोल मतलब अच्छा बिजनेस, गोल मतलब मोर क्लाइंट्स। यहीं तक रह जाते हैं हम, बाकी लाइफ के सारे एरियाज को हम इग्नोर कर देते हैं। बट यू हैव टू हैव सर्टेन हेल्थ गोल्स ऑल्सो, you have to have certain relationship goals also. We human beings are holistic beings. जब तक लाइफ के सारे एरियाज में बैलेंस नहीं होता है, we cannot expect a happy life. करियर बहुत बढ़िया चल रहा है, हेल्थ की बैंड बजी हुई है, तो क्या आप खुश रह लेंगे क्या? नहीं पॉसिबल ना। तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। वी आर होलिस्टिक बीइंग्स। रिलेशनशिप्स पे इंपैक्ट आएगा ही आएगा। अगर आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा, आपके पास पैसे नहीं है, आएगा ना रिलेशनशिप पे इंपैक्ट। अगर हेल्थ बहुत अच्छी है बट करियर में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप खुश रह लेंगे? That's not possible. You have to have goals for all the areas of your life. HRCM रटा हुआ है मैंने, HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी। हर एरिया के लिए आपके गोल्स होने चाहिए। HRCM, हर गोल को एसोसिएट करिए अपने HRCM से। हेल्थ गोल्स, रिलेशनशिप गोल्स, करियर गोल्स, मनी गोल्स। क्योंकि जब हम इन सारे एरियाज में अपने गोल्स रख के चलेंगे और अचीव करेंगे, तभी हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी, तभी हमारी रियल हैप्पीनेस आएगी लाइफ में। ठीक है, तो अगर आपने गोल्स को याद करेंगे एक बार, गोल्स को याद करेंगे एक बार, क्या गोल्स हैं आपके, क्या लगता है आपको? आंखें बंद करेंगे 1 मिनट के लिए अभी सिर्फ, फिर हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद। 1 मिनट के लिए अपने माइंड को जरा दिखाइए, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम टुडे, तो आई एम नॉट मेकिंग यू राइट ऑल द गोल्स। सो जस्ट वंस थिंक अबाउट योर हेल्थ गोल्स, क्या चाहिए? थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप गोल्स, think about your career goals, and think about your money goals. चाहिए क्या लाइफ में? आज तक आई डोंट वांट अ रेड एलिफेंट ही बताया माइंड को, जो चाहिए वो बहुत कम बताया। 1 मिनट लगा के आराम से सोचेंगे कि लाइफ में चाहिए क्या। चलिए जी, अब सीधे बैठ जाएंगे बिल्कुल। Open your eyes and you have to tell me that you are able to listen to me clearly or not. Are you all able to hear my voice clearly? म्यूजिक की आवाज भी आ रही है? बिल्कुल क्लियर है? परफेक्ट। चलिए जी, सीधे बैठ जाइए, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। जो लोग कैमरा ऑन करेंगे ना, मैं उन्हीं को गाइड कर पाऊंगी। मुझे उनका ही पता चलेगा कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं। इनके कैमरास बंद है, आई वोंट इवन बी एबल टू नो कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। कैमरास ऑन कर लीजिए। सिट स्ट्रेट, जहां भी आप बैठे हैं, सिट एब्सोल्युटली स्ट्रेट एंड क्लोज योर आईज। मेक श्योर नोबडी डिस्टर्ब यू इन बिटवीन। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज नितेश। Close your eyes, everyone, and take a deep breath in.
Take a deep breath in and breathe out. One more time. Take a deep breath in and breathe out. Do it one more time. Take a deep breath in and breathe out. And with every breath, you are getting more and more relaxed. You are getting more and more relaxed. Now, with your closed eyes, see that there is a glass wall in front of you. आपके सामने एक शीशे की दीवार है, इसके आर पार दिखता है. आपके सामने एक शीशे की दीवार है. And on the other side of the glass wall, उस glass wall के दूसरी साइड पर there is your mirror image. बिल्कुल आपके जैसा ही दिखने वाली the other you is there. इस glass wall के दूसरी साइड पर there is one other you. This other you looks exactly like you. Look at this other you very, very carefully. This looks exactly like you. But this other you has already achieved all the goals of your life. You are looking at this other you who has already achieved all the goals of your life. आपकी लाइफ के सारे गोल्स, हेल्थ गोल्स, रिलेशनशिप गोल्स, करियर गोल्स, मनी गोल्स, इस अदर यू ने अचीव कर लिए हैं. ध्यान से देखिए इस अदर यू को, कैसा दिखता है ये? लुक एट द फिटनेस लेवल. डिटेल में ऑब्जर्व करिए इस अदर यू को. आपकी ही मिरर इमेज है ये. All the fitness goals have already been achieved. उसका फिटनेस लेवल देखिए. क्या पहना हुआ है इस अदर यू ने? What is this other you wearing? How confident he or she is. How confident this other you is. कितना कॉन्फिडेंट है ये? माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व कीजिए. लुक एट ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस अदर यू. क्या कपड़े पहने हुए हैं इसने? कैसे फुटवेयर पहने हैं? वॉच कौन सी पहनी है? कैसे बाल किए हैं? क्या हेयर स्टाइल है? कैसा दिख रहा है ये अदर यू? Look at the charm at the face, the glow on the face, the confidence. Look at the confidence with which this other you is standing after achieving all the goals. Look at the attitude of this other you. Look at this other you standing in front of you with a lot of confidence. Standing absolutely in front of you with a lot of confidence. This other you is strong, rich, healthy, confident. Create this other you with the qualities that you want. This is your mirror image. आपकी mirror image है ये. आपके goals achieve कर लिए हैं इसने. इसमें वो सारी qualities हैं जो आपको चाहिए. कैसा दिखता है ये? Add all the qualities. Confident, successful, rich, positive attitude. And now this other you is walking towards you. Now this other you is walking towards you. ग्लास वॉल के दूसरी तरफ से चलकर वो आपके पास आ रहा है. और जैसे ही वो वॉल के पास पहुंचा, उसने वॉल को टच किया और वॉल डिसअपियर हो गई. ग्लास वॉल नहीं है. द अदर यू इज कमिंग टुवर्ड्स यू, बिल्कुल आपके पास. And now this other you is standing right in front of you. The confident, rich, healthy, strengthful,
This other you is standing right in front of you. And now this other you is walking into you. This other you has entered you. समा गया है वो आप में. This other you has integrated in you. आपके अंदर समा गया है वो other you. And now you are sitting as if you are that confident person. You are sitting as if you are that rich person. As if you are that healthy and fit person. बिल्कुल ऐसे बैठे हैं आप जैसे आप ही वो हैं अब, क्योंकि वो आपके अंदर समा गया है. अब आप और वो एक हो गए हैं. You are sitting as if you are confident, as if you are fit, as if you are rich and healthy and successful. You are this other you now. And now it's time to increase the size. Your body cells have accepted this other you. You have become this other you. Your body cells have accepted this other you, and your size is increasing. And your size is increasing, and you are becoming bigger and bigger. You are becoming bigger and bigger. आप और बड़े होते जा रहे हैं. आपका साइज बढ़ता जा रहा है. बढ़ते बढ़ते आपका साइज इतना बढ़ गया है that your head is touching the roof of the room. इतने बड़े हो गए हैं आप. And with your size, your power is increasing. Your confidence is increasing. Your strength is increasing. And your size is increasing even more. More than a 3-story building, a 4-story building. And as I count 1, 2, and 3, at the count of 3, your confidence just doubles up. Your confidence just doubles up. 1, 2, and 3. And you have double confidence, double strength, double fitness now. And your size is increasing. It's more than a 10-story building now. And your size is increasing. It's more than a 20-story building now. और आपका साइज और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है. बढ़ते बढ़ते आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप आसमान को छू रहे हैं. Each body cell is vibrating at this energy. आपकी पूरी बॉडी इस एनर्जी पर वाइब्रेट कर रही है. Your body is accepting this as your reality. This is your reality. This is how big you are. इतने बड़े हो गए हैं आप. आसमान को छू लिया है आपने. प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल कीड़े मकोड़ों जैसे दिख रहे हैं, जिनको आपने लाइफ में बहुत बड़ा बना रखा था. And you are realizing that you are way more powerful. You are way more powerful than any of your problems. You stand as big as a mountain. You are fearless. You are everything. You are standing there like a king, standing there like a queen. You are extremely strong, extremely confident. Be in this energy for some time. Let your mind accept this reality. Let your body cells accept this reality. And you are seeing that every cell in your body is vibrating at this reality, is accepting this reality. This is you. Every cell of your body is energized. Every cell of your body is vibrating at this reality. Your neurons are accepting this reality. Tell yourself, I am the king, I am the queen. Tell yourself, I am the king, I am the queen. I am rich, I am fit, healthy. I am strong, I am enough. I have the best attitude in the world. I have the best attitude in the world. Enjoy being this king. This is what you are born to do in this life. Enjoy being this king. Enjoy, smile, and accept this as your reality. Be in this energy for some time and feel extremely grateful towards the universe for giving you this experience of life.
You've been given a beautiful experience of life. Not everyone has what you have. A fit body, some good relationships, a roof over your head, all the fit body parts. Feel very grateful towards the universe for blessing you with everything. And now create an affirmation in your mind that I can contain this energy. I can contain this energy. I am capable of containing this energy. As and when you feel comfortable, you can open your eyes after rubbing your palms. Rub your palms very vigorously. Rub your palms very rigorously. Very rigorously rub your palms. And put all this beautiful energy over your face and your body. Okay. So, how are you feeling? One word in the chat box. How are you feeling? Tell me, how are you feeling? I want one word in the chat box. Absolutely great, very nice, amazing, magical, so relaxing, relaxed and transformed. Relaxed, great, good. Sukoon, amazing, focused, better, good and relaxing. So, this is the energy that you want to feel, that you are born to feel. But हमने कभी यहाँ न्यूरॉन्स को दिखाया नहीं था, कभी उनको बताया ही नहीं कि जब गोल्स अचीव कर लेंगे तो कैसा लगेगा. फील सो पॉजिटिव, बेस्ट सेशन सक्सेसफुल. थैंक यू सो मच. पीस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. I'm so happy to hear to read all these messages. Thank you so much. Thank you. Thank you. तो आज हमने लाइफ में पहली बार न्यूरॉन्स को दिखाया कि जब गोल्स अचीव कर लोगे, जब फोकस करोगे तो क्या मिलने वाला है. ये तो हमने कभी बताया ही नहीं था. हमेशा उसको धिक्कारा ही है, क्रिटिसाइज ही करा है अपने माइंड को हमेशा, है ना. आज हमने उसको पहली बार दिखाया. व्हाई डू यू नीड फोकस इन लाइफ? व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव? हाउ गुड इट कैन गेट. Next level. Thank you so much. Thank you. Thank you. I'm so happy to read all these messages. Thank you so much. It was wonderful connecting with you all. I'm feeling so grateful. You were all such a wonderful audience. I'm really, really feeling very thankful to you all. चलिए जी, अब हम I'm sorry, question answer session ले लेते हैं एक, है ना. आपके जो भी questions हैं, although I can see that nobody really wants to speak much, क्योंकि ये ऐसी feeling होती है that you just feel like being with that energy for some time. It happens, but this is you, right? This is you. This feeling was within you only. अंदर ही थी ना, सिर्फ कभी express नहीं करी थी, कभी brain को, mind को दिखाया नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है. मैंने स्टार्ट करने से पहले बोला कि जहां एनर्जी जाएगी वही चीज बढ़ेगी. आज तक अगर हमने सिर्फ कंप्लेन्स ही करी हैं ब्रेन से, उसको क्रिटिसाइज ही करा है, उसको धिक्कारा ही है, तो वही बढ़ता रहा है ना लाइफ में, राइट. तो आज वी आर गोइंग टू बी फ्रेंड्स विद आवर माइंड. फ्रेंड है हमारा, दुश्मन नहीं है. सिर्फ उसको सीखना है हैंडल करना. ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. यस, वी कैन टेक द क्वेश्चंस. ओवर टू यू शिवम. देख सकते हैं क्या करना है. शिवम मुझे लॉस्ट लग रहे हैं. Definitely, exactly. I can say one of the best session we can have today, or we have the session really so mind blowing. मतलब lots of new things we learned today, और definitely सभी के अंदर बहुत बड़ा change भी आएगा. The things which you have taught today
definitely we are going to practice again and again until we achieve that. Also, thank you so much. And if anyone had that any kind of a question, then you can ask in the comment section. And I think इतना अच्छा session होने के बाद में शायद ही किसी के पास कोई question हो, because you have covered so many things. Literally, you have covered so many other things. So at last, ma'am, I can say one of the biggest thanks to you from the entire family, Distilford. So thank you so much. Again, definitely we will learn once again from you. Okay, so thank you so much, ma'am. Yeah, thank you so much. Acha, I'll request my team to share my Insta ID here if you can allow that, because I Yeah, don't. sure, definitely, ma'am. Yeah. Make sure आप share कर दो. Yeah, I And think everyone must follow the ma'am over the Instagram, my right? All the Instagram links. handle. Yes, Yeah. I keep on sharing little bits of information there also. Yeah. So you can follow me on Instagram and you can, just connect with me there also. And if you have any questions, you can ask right here, or you can message me on Instagram also. I'll try to answer there too. I will also personally share the link, ma'am. Definitely, we are going to share. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. God bless all of you. All right. Bye. All the best Thank for you your so life. much, ma'am. Thank you. All right. All right.